Hello and welcome to Play It Again. I'm Raja Sen. I'm Pragya. This time we're going to be speaking to Swanand Kirkire, one of India's true polymaths, a masterful lyricist, singer, actor, writer, and theatre director. Also, a really close friend of both me and Pragya. Swanand is intrinsically a part of our own cultural DNA, part of our shared DNA. We've all sat back and listened as Swanand has gone about his artistic exploration. He's a truly interesting and truly innovative musician, a fine poet, and somebody who wears his artistic inspirations very liberally on his sleeve. And so we've had all kinds of conversations. Swan has always broken into song, and this is the first real episode we are doing with someone who is such a close friend, you know such a definite part of our lives. Sitting down with Swanand was very interesting, not just because we are inspired by his work. He has won 3 national awards. He's won Best Lyrics a couple of times, but he's also won a Best Actor award, which is rare and unheard of, really, for a lyricist. And his talent spans really no bounds. He's doing all kinds of things, including starring in the currently the most one of the most popular OTT shows, Panchayat. He's does a little bit of everything, and he does it well with a lot of verve, with a lot of style, and it was great to talk to Swanand, who would burst into song or burst into poetry whenever we would ask him. Yeah, it was very, very special. It felt like an adda from a time gone by. But I think for me, what was really moving was listening to him talk about Pandit Kumar Gandharv. I've been fangirling over Pandit Kumar Gandharv ever since I can remember it. And I have always envied the fact that Swanand knew him from when he was born, practically, because his parents learned music from him. And, there aren't that many good biographies or documentaries or even essays on Pandit Kumar Gandharv's life. So, have him create this kind of word portrait of this great man that he's known since he was a child for us was truly, truly special. And particularly his use of the word sugrahi for Pandit Kumar Gandharv to describe how he would imbibe, um, take rather, grahan karo, what is best from life was really, really special. Yeah, it's such a unique, fantastic vantage point, really. And for me, it's like we've known Swanand a long time. Things have lots of ups and downs in our lives artistically. And the last I've really interacted with Swanand was he was the lyricist on the film I was writing, Chup, and it was great fun to work with Swanand and again see the rhymes and see the way he would work with the script and characters. But this sitting down for this podcast was probably the most formal, conversation I've had with Swanand. But having said that, the beauty of it is that idea of Play It Again, that one artistic thing leads to the other, which happened for me in this conversation in a great way when we were talking about the moon, about socialism, and about poetry, about art. All of it just kind of rolled together really beautifully, and then finally, of course, culminated by asking Swanand to sing a little bit of Koya Koya Chand, which is one of my favorite of his works. And as always, that was beautiful. Well, he's written the lyrics to a film you wrote. Um, and he's also written and composed a song which I consider to be the theme song of Oijo, which is the company that I co run with my friends and the company that produces this podcast. But Oijo is more than a company, at least for all of us. It is an idea, it is a movable adda, if you will. And um, Oijo is what brought Raja and me together as friends. And one of his theatrical songs I appropriated with his permission as the anthem song of Oijo. Oijo is basically colloquialism for it comes from the Bengali word oije, which essentially means lo and behold, or that there, quite literally translated. And he has a beautiful song that goes wo vaha mere khwabon ka jahan. And he ends this very special episode by singing the song. So that made it extra, extra, extra fun for me. There you have it. A really interesting conversation with one of our favorite people, our very own Bavra man, Swanand Kirkire. Hello, everyone, and welcome. And hello, Swanand.
What a pleasure it is Hello. to see you. It's been a while. And thank you for doing this. Thank you so much. This is such a great idea you guys are doing, at Thank least. you. Thank you. We just basically, it's an excuse for us to talk to everybody we love and admire and our friends. Sit and do 1 hour of adda about music and books and films. Yeah, So, that's great. yeah, and in that way. And you Um, were one of the names, Swanan, that immediately came up. Of course, the listeners of the show might not know, but the three of us have hung out a lot at length Yeah. for many periods of time in our really our formative career years, and Yes. and also the fact that Swanand really does everything right. So I think that's also what we thought culturally would really set the cat among the pigeons. So absolutely, absolutely. But Swanand, your parents were classical musicians, singers. मैं पहले सबसे पहले ये पूछना चाहती थी कि शास्त्रीय संगीत का जो सबसे पहला अनुभव आभास तुम्हें याद है, वो क्या है? मैं वो नहीं मतलब एक्चुअली वो पहला अनुभव आभास मुझे याद नहीं है। क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी के साथ ही आया। मुझे लगा सबके माता-पिता गाते हैं। मतलब मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि सबके ही घर में यही होता है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ये बिकॉज़ माय पेरेंट्स यूज्ड टू लर्न फ्रॉम पंडित कुमार गंधर्व। So there used to be a routine, like every Saturday when I was 3 or 4, we entered his house actually, yeah. पर उसके पहले भी गाना था घर में। तो माय फादर यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक, तो फ्राइडे सैटरडे नून में बैंक का खत्म होता था काम, हम बस में बैठ के वहाँ चले जाते थे। इवनिंग ही यूज्ड टू लर्न, नेक्स्ट मॉर्निंग ही यूज्ड टू लर्न, संडे मॉर्निंग, संडे आफ्टरनून, संडे इवनिंग, 3 सेशंस ऑफ लर्निंग एंड संडे लेट नाइट यू कम बैक। एंड बेसिकली तो वो बिल्कुल छोटे थे तब ये होता था, लेकिन फिर बाद में जब फादर वगैरह जाने लगे तो हम शाम को थोड़ा मैं जान बट देन आई बिकेम द पार्ट ऑफ द फैमिली आल्सो बिकॉज़ दे वर वेरी नाइस एंड काइंड एंड दे आर ब्यूटीफुल पीपल। तो घर का ही मामला हो गया फिर तो इतना ज़्यादा संगीत था कि मैंने दूसरा संगीत भी बहुत कम सुना था, मैंने सिर्फ़ कुमार गंधर्व सुना था, मेरे बहुत बचपन में। बिल्कुल बचपन में सुबह 4 बजे उठो, 3 बजे तो माँ रियाज़ कर रही होती थी। और आपको कोई लोगों को लगता है हाँ हाँ क्लासिकल संगीत की लहरें हैं, तो आपको लग रहा होता है भाई सुने तो थोड़ी देर। सो हाँ, बट उसका उसका मेरे पे इम्पैक्ट बहुत पड़ गया। Like it's one, the thing I envy about you most, like if I could ask for one wish in my next life, it would be to have met Kumar Gandharv. Mm. तुम तो meet छोड़ो, हाँ हाँ you हाँ knew हाँ। him intimately, right? Like he for me is my, I mean, I love music, I love all kinds of music, but if I could meet just one person in the entire firmament of music, for me it would be Kumar Gandharv. So I have to ask you a little bit, मुझे थोड़ा vicarious pleasure दे दो. What was he really like? And you, for our listeners who may not know too much about his life, why would you say he was a rebel? पंडित कुमार मतलब पंडित ऑल्सो कुमार गंधर्व वाज अ I'll just give a brief introduction of him which everybody knows. please. Basically, he was one of the most prominent classical singers of our times. He was a child prodigy. He started as he was born in uh, Karnataka, and he was a child prodigy, and he used to replicate like रिकॉर्ड्स लाइक आरएफ वो 70 आरपीएम रिकॉर्ड्स आते थे ना, कितने आरपीएम वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आते थे, उस्ताद करीम खां, उस्ताद ये उस्ताद वो एग्जैक्टली रिप्लिकेट करते थे 9-10 मिनट्स का। तो ही वाज वेरी वेरी फेमस देन, लाइक एवरीबडी यूज्ड टू लव हिम, बट हिज फादर डिड अ वाइज थिंग एंड ही pulled him out of there and he put him in a music school, which was the Devdar School of Music. और वहां से वो 19-20 साल तक 20 साल 21 साल तक वो वहां पे म्यूजिक सीखे। देन ही लाइक ग्रू एज अ म्यूजिशियन देयर, एंड देन ही गॉट टीबी, तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया 20-21-22 साल की उम्र में, ऐसी कुछ एग्जैक्टली उम्र नहीं मुझे पता। एंड देन ही वाज बाय द टाइम ही वाज मैरिड, तो दे आस्क्ड हिम टू शिफ्ट समवेयर वेयर देयर इज लाइक गुड वेदर एंड दिस थिंग, तो वो मध्य प्रदेश में देवास में शिफ्ट कर गए।
एंड वाइल ही वाज गेटिंग, मतलब उसका ट्रीटमेंट ऑफ टीबी चल रहा था, बाय दैट टाइम ही केप्ट हिज इयर्स ओपन, ही हर्ड लोकल फोक, देवास का फोक म्यूजिक, देवास में जो कबीरपंथी गायन होता है वो कबीरपंथी गायन, एंड ही स्टार्टेड finding the roots of the Indian classical music into these folk tunes and in these folk melodies. And then he like because he had learned in a kind of Devdar school was a university, so he was not one gharana disciple, so he learnt many gharanas. So then he broke that gharane ka structure, ही ऑल्सो ब्रोक दैट राग का स्ट्रक्चर, ही सेड कि ये घराना ऐसा गाता है तो मैं ऐसा गाऊंगा, वो घराना ऐसा गाता है तो मैं ऐसा गाऊंगा, ये घराना वो घराना को मिक्स करूंगा, और मुझे महसूस हो रहा है कि इस राग को ऐसे तोड़ना है तो मैं तोड़ दूंगा। उनका एक फेमस वो है कि किसी एक पर्टिकुलर राग में एक सुर जो नहीं लगता वो उन्होंने लगाया, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोले यार काफी देर से साइड में खड़ा था वो सुर और मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि लेट मी इन, so I just let him in. Or he used to say कि मैं I'll show you a profile of this raga. You know, every time you see a face of the raga, I'll show you a profile of this raga. What Bhaskar Chandawardkar would say that every musician basically shows the beautiful places in the raga. You know, it takes you through beautiful places. He also takes you through dark spaces. He also takes you through the spaces which are like not very good, you know, like nobody wants to go there. So that's how Kumar Gandharva was, and as a person he was what he was in his music, he was in his person, very 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 interested in every art, be it painting. He used to talk about his music like architecture. His friends were architects, you know, they used to come to his house. His friends were theater people, his friends were literature people, his friends were uh, his friends were malis of this his house. uh, कौन सा पेड़ लगाना, कौन सा पौधा लगाना, कौन सा पौधा कब पैदा होता है, कब कब कौन से पौधे को कब फूल आते हैं, कौन सा बर्ड कब आता है, एवरी डे वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, looking at good things, looking at making great things, great food lover. Wherever he'll go, he'll learn the recipe, घर पे आके बनेगा, कुछ भी हो. Every day was a celebration. So that's how that was my first impressions on me. You know, like there is a word in Hindi called sugrahi. अ, जो भी दिखे उसमें से अच्छा लेना, सुख ग्रहण करना। तो मुझे लगता है वो वहाँ से मुझे सुख अच्छा लेना मैंने शायद वहाँ से सीखा, अगर सीखा है तो। बिकॉज़ वो हर दिन कोई एक नई बात होती थी। मतलब वो उनके यहाँ पे ये भी होता था कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर फूल लगाया उन्होंने, वो जो 12 साल में एक बार खिलता है, ब्रह्म कमल बोलते हैं उसको, या कुछ 5-6 साल में एक बार खिलता है, ऐसा कुछ है। वो एक एक वो खिल गया तो आपको पहले से पार्टी, आपको फ़ोन आ चुका है कि आप आ जाइए सब लोग, और वो फूल खिलने वाला है और आज रात को खिलेगा 12 बजे, और तब हम लोग पार्टी करेंगे। और वो फूल की पार्टी होती थी। या अब वो पंछी आने वाला है तो उसको देखने आ जाओ। या बाम्बू में एक तरह का, एक उनके घर में बाम्बू था, तो बाम्बू में एक तरह का राइस होता है, मतलब उसके सीड्स होते हैं, वो एक राइस पैदा होता है। कई-कई सालों में पैदा होता है वो। तो वो बाम्बू का राइस आ रहा है, तो वो बाम्बू का राइस खाने के लिए आओ। तो एवरी डे वाज़ इट वाज़ जस्ट नॉट अबाउट म्यूज़िक। इट वाज़ अबाउट एवरीथिंग। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, बोलूँ ना? नहीं, बोलो। हाँ। तो मैं इवन मेरे साथ ये होता था कि मेरे पास है ना किशोर कुमार का एक कैसेट होता था। तो मैंने मैंने एक बार, उनकी बेटी जो है कलापिनी, उसने मेरे से लिया कि मैं बाबा को सुनाऊँगी ये। सो किशोर कुमार एवरीबॉडी न्यू, बट मेरे पास ना बिल्कुल ही उसके फन सॉन्ग्स का कैसेट था। मतलब मैं एक्चुअली मैंने वो दिया उनको। तो ही व्हेनेवर ही यूज्ड टू ट्रैवल, नो, ही विल कम टू मी एंड ही विल से दैट वो मुझे वो कैसेट भेज देना, या कुछ और किशोर कुमार का। तो ट्रैवलिंग टाइम ही यूज्ड टू हियर किशोर कुमार मेनी अ टाइम्स। क्या बात है! And so he was very 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 open to everything, you know, like I a wonder if great guy. Kishore Kumar knew that Kumar Gandharv was listening to I his think he knew. I think he his knew. music while traveling. I would take it Yeah, as a yeah, huge yeah. compliment. वैसे मैंने पहली बार, ये एक डाइग्रेशन है, आज अपनी पूरी ज़िंदगी में इस साल मैंने पहली बार ब्रह्म कमल खिला हुआ देखा, और मैं देखा? बैठ के, हाँ, देखा मसूरी में, जहाँ मैं बैठकर शाम को अ
कुछ लिखने गई थी, साहिर के गाने सुन रही थी, एक ग्लास रम पी रही थी एंड आई गॉट अ कॉल जहाँ गेस्ट हाउस था कि दीदी नीचे आ जाओ, ब्रह्म कमल खिले हुए हैं। तो ज़िंदगी में ओह! पहली बार देखा। लेकिन जल्दी से स्वानंद एक और सवाल ये कि जैसा तुमने कहा कि जहाँ तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है उसका कोई पहला आभास तुम्हें याद नहीं है क्योंकि यू ग्रू इनटू इट, यू वर बोर्न इनटू इट। पर उसके अलावा किशोर कुमार की बात की, अगर आप तुम्हारे कल्चरल डीएनए की बात करें तो और क्या था? मतलब फॉर्मेटिव इयर्स में any other books or music or movies that came to you very early in your life that you were growing up around? See, first and foremost, what came to my life was basically Hindi cinema. I started from there. I used never to like to go to movies. You know, like I used to get scared. Okay. किसी को गोली मार देंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आई नेवर यूज्ड टू लाइक दैट। बट मोहल्ले में लड़के जाते थे, वो पीयर प्रेशर था कि यार ये फ़िल्म नहीं देखी, वो फ़िल्म नहीं देखी, शोले आई, तुमने शोले नहीं देखी, तो मैं शोले से डरता था। तो मैंने एक वक़्त के बाद में मैंने सारी फ़िल्में री-रिलीज़ का ज़माना था, तो मैंने वो देखनी शुरू की। उम, लेकिन देयर वाज़ वन और आई वाज़ इन इंदौर, सो एमपी, तो वहाँ पे एक थिएटर था जो इंग्लिश फ़िल्में चलाता था। उसका नाम था स्टारलेट। इट यूज्ड टू बी अ ओपन एयर थिएटर जो बाद में उन्होंने कवर कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ इंग्लिश फ़िल्में चलती थी। तो माय फादर यूज्ड टू टेक मी टू सी सम इंग्लिश फ़िल्म्स, यू नो, लाइक मैकैनस गोल्ड देखा मैंने, बेन-हर देखा वहाँ पे मैंने, या कोई चार्ली चैपलिन देखा मैंने वहाँ पे। चार्ली चैपलिन का तो मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि मैं द ग्रेट डिक्टेटर लगभग मैंने 3 दिन तक रोज़ देखी थी, क्योंकि मैं फिर घर पे नहीं, बिना बोल के, मेरी स्कूल के पीछे ही था वो थिएटर, तो स्कूल से Hmm. निकल के एक शो देख लेता था। ग्रेट डिक्टेटर, मॉडर्न टाइम्स, इट वाज़ लाइक वो। वहाँ से मुझे पता चला कि एक हिंदी सिनेमा है और एक ये सिनेमा है, और उसके अलावा बहुत सारी भाषाएँ ये चीज़ बोलती है। इंदौर के बारे में स्वानंद थोड़ा बताइए, बिकॉज़ यू नो मिक्स टेप्स का ज़माना एंड द फ़िल्म ऑफ दैट टाइम, दोज़ आर अंडरस्टैंडेबल, बट इंदौर का अपना कोई जो स्ट्रीट कल्चर हो या लोकल ट्रेडिशंस हो, मतलब इंदौर के वजह से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका इमोशनल एक्सप्रेशन, आपका रिदम इन्फ्लुएंस हुआ है क्या? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब इंदौर को मैं थोड़ा-सा मतलब मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इंदौर के ऊपर, इन इन अ मराठी दिस थिंग। मैंने अपनी अपनी स्टडीज़ है मेरी, इसका कोई बहुत आधार नहीं है, इसका कोई बहुत, तो इंदौर वाज़ अ मराठा स्टेट। तो होलकर जो राजा थे, जो पानीपत से जीतते हुए वो पेशवाज़ आ रहे थे, तो उन्होंने ग्वालियर दे दिया था सिंधिया को, इंदौर दे दिया था होलकर्स को, और वो दे दिया था, बड़ौदा दे दिया था गायकवाड्स को, ना, इस तरह से वो तो ये छोटी-छोटी अ, मराठा स्टेट थी वो। तो हम लोग जो है ना, हम रिवर्स माइग्रेशन करके गए हुए हैं यहाँ से, मतलब जो मुझे कहानियाँ पता है वो ये है कि उस ज़माने में कोई इंग्लिश का ट्रांसलेटर नहीं हुआ करता था, तो मेरे पर नाना जी के नाना जी अंग्रेज़ी सीखे हुए थे, तो वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन करने के लिए वहाँ से आए थे, और वो होलकर के दरबार में अंग्रेज़ों के साथ में, होलकर्स वर लाइक हैंड इन हैंड विथ अंग्रेज़ उस ज़माने में। मतलब उस तरह से, मतलब वो तो उस वज़ह से बहुत सारा, तो इंदौर में बहुत सारा मराठी है, इंदौर में राजस्थान बॉर्डर होने की वजह से बहुत सारा राजस्थान है, इंदौर में गुजरात बॉर्डर के होने की वजह से बहुत सारा गुजराती है, और इस सब को मिला के एक इन इन एक मालवा की एक लैंग्वेज और पैदा हुई है, वो है मालवी, जिसको बोलते हैं। और मालवा में तो मालवा के कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं जो जो सबसे ज्यादा उसमें वहाँ के मालवा के बारे में कहा जाता है कि मालव भूमि गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, वहाँ कोई कमी नहीं है। तो हर पग पे रोटी है और हर डग पे नीर है, पानी है। हुँ। तो समृद्ध जगह है, पैदावार अच्छी होती है। वो प्लेटो है, प्लेटो होने की वजह से नीचे बहुत सारा ब्लैक सॉइल है, बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल है, तो उसकी वजह से तो हैप्पी पीपल, you meet happy people, you don't meet like other parts of this thing, you see, because there are really geography makes them sad, or things make them sad, तो यहाँ पे आपको वो नहीं मिलते, तो बातें बहुत करते हैं, बातों से बातें चलाने की बहुत बहुत वो है। दूसरा, मॉडर्न इंडिया में ना इंदौर किसी भी ट्रेन, लाइक एक एक वेस्टर्न लाइन और एक
सदर्न लाइन, दो लाइन्स रेल की जो पड़ती है, वो दोनों इंदौर के बाजू से जाती है, इंदौर में नहीं आती। तो ये मेन स्ट्रीम में नहीं आता, कभी भी आया ही नहीं कभी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसका वहां पे कोई इन्फ्लुएंसेस उस तरह से बाहर से लेट आया, बहुत लेट आया। अब आ गए हैं, अब तो सब कुछ मिक्स हो गया, अब कुछ नहीं है ऐसा। पर उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का फूड, वहाँ की बातें, वहाँ का सब कुछ, वहाँ सब कुछ अपना ही बनता है। उनको कुछ नहीं पता, उनको खुद वो अपना, उनको वो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जैसा एक वो होता है ना, वैसा है कि इनको लगता है कि हमने ही इजाद किया माइक्रोफोन, या हमने कोई चीज पता लगाई कि यार ऐसे भी खाया जा सकता है, क्योंकि वो उस छोटी सी जगह पे इजाद हुई होती है। हम्म। तो उसकी वजह से काफी इनोसेंस है, मतलब इंदौर में वो मुझे बहुत बहुत मजेदार रहा। और बातें, और तीसरा कबीर पंथ, उस मालवा की धरती में कबीर है। और हर बात में, जैसे मेरी दादी, मेरी नानी, सब लोग, मेरी नानी, ये सब हम लोग वहीं के हैं। तो बोथ साइड्स वी आर फ्रॉम, तो वी आर मराठीज, थैंक यू, बट या बट वी आर मालवी। हम ज्यादा लोग, हम, मेरी बहन को मैं बात करूंगा, किसी से कहेंगे मालवी लोग हैं हम। हमको वहाँ की रूट्स है हमारी। तो मेरी दादी भी पोइट्री करती थी, मेरी नानी भी पोइट्री करती थी, इजीली करते थे ये लोग। और सब नर्मदा किनारे के लोग थे, और उनके बातों में कहावतें, मुहावरे, ये तो रोजमर्रा की बात थी। मतलब इतनी सारी, जो कि मैं 2 OTT का शो बना दूं, इतनी तो मेरी दादी बोल जाती थी। it was that was there, and that's what came to me, like, कि मैं, मेरे पास जो वर्ड का ट्रेडिशन आया वो वहीं से आया, ऐसा मैं साफ साफ मानता हूँ। बिकॉज कबीर की फकीरी, कबीर की विरक्ति, कबीर का जीवन से प्यार, ऑल दैट, द लव फॉर लाइफ, एवरीथिंग केम फ्रॉम देयर। What made you take English literature? And did that in any way, anything in your curriculum? वैसे हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते करिकुलम पे, but फिर भी, because you were somebody who was curious, was there anything that came to you that influenced or made you think anew about what storytelling can be or what language can do? Yeah, so my grandfather was an English student. मतलब he used to teach English also. He used to, तो मेरे घर में, और my father did English literature also, MA in English literature from that kind of Indore. तो हमारे घर में बातों में हमेशा रहता था टॉमस हार्डी, या इस तरह की चीजें, शेक्सपियर की बातें होती थी घर में, तो वो मैंने सुना था। लेकिन बाय दैट टाइम कल्चरली इंदौर बहुत बदल चुका था। तो वो जो थोड़ा सा अंग्रेजी जमाने का इंदौर था, जिसमें मेरे फादर्स और ग्रैंडफादर्स ग्रो हुए थे, वो थोड़ा सा बदल चुका था। जैसे मैंने कहा ना, वो इंग्लिश इंग्लिश फिल्में आना बंद हो चुकी थी, वो हिंदी का एक उदय हो चुका था। तो उस तरह से, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग English literature. Why I started doing English literature was because I wanted to know about English literature. लोग वहां पे, लड़कियां वहां पे इसलिए आती थी कि शादी हो जाएगी तो अमेरिका चली जाएगी, तो इंग्लिश लिटरेचर रहेगा तो थोड़ी अंग्रेजी काम आ जाएगी। इतना सिंपल था वो। तो ज्यादातर लड़कियां होती थी, बाकी लड़के इसलिए चले जाते थे कि किसी की दुकान है, किसी का कुछ है, यार चलो यार, एक अच्छा क्राउड, एक अच्छी जेंट्री है, उसके बीच में आप। मैं अकेला इंसान ऐसा था जो जेन्युइनली मुझे लग रहा था कि मुझे कौन सिखाएगा इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर यहाँ वहाँ मराठी किताबों में, हिंदी की किताबों में पढ़ा था, उसके बारे में जानता था। मैं शेक्सपियर शेक्सपियर के बारे में जानता था। तो मुझे लग रहा था कि कोई मुझे समझाएगा कि ये ऐसे है, ये वैसे है, या मिल्टन क्या है, चौसर क्या है, ये क्या है, ये सब कोई मुझे, कोई ये पोएट्री जो है, ये मुझे कोई समझाएगा। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया वहां, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ मार्क्स की बातें होती, कि ये कर लोगे तो 20 नंबर्स, वो कर लोगे तो 30 नंबर्स, वो कर लोगे तो 40 नंबर्स, किसी को कुछ। तो वो सिखा देते थे जैसे कोई पढ़ाई की जा रही, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मुझे कुछ वहां से मिल नहीं रहा था। हम्म। मतलब मुझे ये था कि कोई मुझे शेक्सपियर लाइन टू लाइन समझाए भाई, हम्म। क्योंकि अंग्रेजी तो मेरी उस तरह से जबान नहीं थी, तो मुझे वो मुश्किल। और ये बड़े लोग जो बातें करते थे उसमें, हाँ, पेंटोमीटर की बात करते थे, और ये करते थे और वो करते थे, और मुझे तब लगता था कि कोई तो मुझे बता दो यार, कोई मुझे बता दो कि ये क्या लिखा है। ये मैंने खोला शेक्सपियर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है 5 लाइनें, पहली लाइन। तो दैट वाज द रीजन आई टुक इंग्लिश लिटरेचर, बट दैट डिडंट वर्क। बट या ऑफ कोर्स, वो वहां पे जो सुना, पढ़ा,
वो जितना समझा वो वर्ड्सवर्थ, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो कीट शेले, वो सब दिमाग पे कुछ ना कुछ उनकी छाप हमेशा रही। एक 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 उस तरह से चीज़ों को देखने का मन करने लगा। द रा लास्ट राइड टुगेदर, इफ आई रिमेंबर दैट ब्राउनिंग्स पोएम। वो मतलब सुन के वो पहली बार आँसू छलके कि यार कोई कोई ब्रेकअप का द लास्ट राइड टुगेदर हो रहा है। और शेक्सपियर भी पढ़ा उसी ज़माने में मैंने। मैं तो ये भी कहता था कि हम इंदौर में हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम सीखते थे। तो तो इंग्लिश लिटरेचर हिंदी मीडियम में किया है मैंने। मैं ऐसे ये मेरा जोक हुआ करता था उस ज़माने। स्वनंद, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आप थिएटर का जो आपको इंटरेस्ट उस टाइम लगा, बिकॉज यू आर कमिंग, लाइक प्रज्ञा सेड, योर पेरेंट्स आर क्लासिकल म्यूजिशियंस, तो उसमें इतना बड़ा गुरु शिष्य ट्रेडिशन रहता है, इतना घराने का ट्रेडिशन रहता है, और उसके बीच आपको ये थिएटर का कीड़ा जो आया, वाज इट अ मोमेंट ऑफ रेबेलियन, यू डिड नॉट वांट टू डू, कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया था? I 100% that was my thing because theater they were not allowing me to do। अच्छा। और उसमें थिएटर के साथ एक जुड़ा होता है ना हम्म। कि मुफलिसी उसके साथ जुड़ी हुई है कि इसके हम्म। साथ गरीब रहते रह जाते, जो थिएटर करते हैं उनका कुछ होता नहीं करियर में। वो आज भी जुड़ा हुआ है, कल उस दिन की बात नहीं है अभी भी। तो और वो सच भी है। लेकिन मतलब इसी मेरे घर में मेरा एक चाचा है, था, जो छोटा था, मेरे मेरे से 8-10 साल बड़ा था वो थिएटर करता था। और वो इंदौर में मराठी और हिंदी थिएटर दोनों तरह के दोनों थिएटर होते हैं। तो ये मराठी लोग जो होते थे, हिंदी हमको हिंदी भी आती थी, तो हम दोनों तरफ जाते थे। तो उसके साथ वो मुझे साइकिल पे बैठा के नाटक की रिहर्सल दिखाने ले जाता था। एंड आई थिंक दैट वाज समथिंग आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे, कि ये 5 बजे आएगा। मेरे दोस्त क्रिकेट खेलते थे, मेरे दोस्त कुछ कर रहे थे, और मेरा हम्म। चाचा आएगा और मुझे साइकिल पे बैठा के नाटक की रिहर्सल पे ले जाएगा, क्योंकि वहां पे जो जिंदगी में देखता था वो सबसे वो वाज द कूलेस्ट। कि एक्चुअली मैं बोल भी चुका हूँ पहले, लेकिन मैं फिर बताता हूँ कि जैसे गुरु शिष्य परंपरा में, जैसे कुमार जी के यहाँ पे नहीं थी उस तरह से गुरु शिष्य परंपरा का कोई उस तरह से कोई सीन नहीं था, पर हम्म। फिर भी था। हम्म। वो आपको सुनना पड़ता था, आपको ये तो एक वॉइस बनाना, अपनी एक वॉइस अपनी होना, ये बहुत 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 धीरे-धीरे करना पड़ता था सच है। यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि भाई देयर आर पीपल हू आर सो यू कैन से थिंग्स। इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू कैन से कि आई डिडंट, द डायरेक्टर विल आस्क कि कैसा लग रहा है? और आप बोलोगे कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, और वो सुनेगा इस बात को। और ये बहुत बड़ी बात थी कि यार कोई आपकी छोटे से इतना छोटा-सा आप हो और आपने कुछ बोला कि यार वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सुन ली उसने, कहा, "अरे यार करेक्ट कह रहा है, चेंज करते हैं।" दैट हम्म। वाज़ थिएटर वाज़ दैट फ्लूइड एंड स्टिल इज़ हम्म। इवन टुडे, लाइक इट्स उसका द नेचर ऑफ दैट आर्ट इज़ सच दैट इट इज़ डेमोक्रेटिक। यू कैन नॉट मेक इट अ गुरु शिष्य आर्ट। हम्म। So that I started liking. There were many beautiful young girls there, which was also एक रीजन था। अच्छी बातें, पढ़ाई की बातें, कुछ ये पढ़ो कुछ वो पढ़ो की बातें होती थी। तो मेरे चाचा जहाँ नाटक करते थे वो एक बैंक था। तो वो बैंक के मैनेजर जो थे वो प्ले में एक्टिंग करना चाहते थे, और एक दूसरी बैंक का एक पियून था, वो भी एक्टिंग करता था, वो बेटर एक्टर था। और उसके पास में वो थोड़ा यूनियन से जुड़ा हुआ था, तो उसके पास ना उस ज़माने में रशियन किताबें आती थी, तुमको पता है? रशियन रशियन पब्लिकेशंस आती थी मॉस्को से, इंग्लिश एंड हिंदी में। उसमें टॉल्स्टॉय आता था, उसमें गोर्की आता था, उसमें एना कैरेनिना आया था उसमें, और सब हिंदी ट्रांसलेशंस आते थे अच्छे से। हम्म। तो वो जो उसका नाम था सूर्यकांत भोजने, आई स्टिल रिमेंबर हिज, मतलब आई लव हिम। आई तो सूर्यकांत भोजने मुझे वो किताबें देता था पढ़ने के लिए। और और वो दिन में उसकी किताबें लेने जब उसके बैंक में जाओ तो वो व्हाइट कपड़े पहन के वो चाय पिला रहा होता था। हम्म। लेकिन शाम को जब वो थिएटर स्पेस में आता था तो वो जो ब्रांच मैनेजर अंकल थे जिन्होंने हमारे लिए उनका ब्रांच खोल दिया था थिएटर करने के लिए, वो एक छोटा रोल करते थे, भोजने बड़ा रोल करते थे। और उस इक्वेशन में सब कुछ चेंज हो जाता था थोड़ी देर के लिए। और वो बताता था उनको कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा भाई
ये दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, दिस इज वेयर आई वांट टू बी, दिस इज द वर्ल्ड आई वांट टू बी। और देन और वहां से सब शुरू हुआ। फिर मैं दिल्ली, फिर इंदौर में एक एनएसडी का वर्कशॉप हुआ एंड ऑल दैट हैपेंड। ऑब्वियसली जैसा तुमने कहा एनएसडी की वर्कशॉप हुई, इवेंचुअली यू वेंट टू एनएसडी। एनएसडी के जितने लोगों से मैंने बात की है, चाहे वो कारंत के ज़माने के हों, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, 61, 62 वाला बैच हो, या तुम्हारे हम उम्र हों, इट्स ऑलवेज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव स्पेस फॉर पीपल। यू नो, देयर इज अ लॉट दैट इट पुट्स देम थ्रू अ रिंगर। देयर इज ऑलवेज अ प्री एनएसडी, पोस्ट एनएसडी। जिन लोगों ने या थिएटर किया भी नहीं उसके बाद, उनकी भी लाइफ एक प्री एनएसडी, पोस्ट एनएसडी है। तो उस हिसाब से व्हाट वर द न्यू आइडियाज, पीपल, बुक्स, म्यूजिक दैट यू केम इन कांटेक्ट विद एट एनएसडी, जिससे तुम्हारे होराइजन का भी काफी विस्तार हुआ होगा? सो हाउ डिड योर वर्ल्ड व्यू स्टार्ट टू चेंज? तो एनएसडी में जब आप आते हो तो आपको पता चलता है कि अरे भाई ये अच्छा थिएटर को ऐसे किया जाता है। लेकिन हाँ, पहले 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 हो गई एक एक पारसी थिएटर की वर्कशॉप, फिर उसी समय एक हो गई ग्रीक थिएटर की वर्कशॉप, फिर उसी समय एक हो गई कि आप कॉमेडियन दिलारते पढ़ लिया आपने, और उसमें मास्क कैसे यूज करते हो जाता है। फिर कोई बताता है आपको आके, और सिखाता है कि छाऊ में कॉमेडियन दिलारते में मास्क कैसे यूज करते हैं, छाऊ में कैसे यूज करते हैं, मार्शल आर्ट्स क्या होती है, बॉडी पे काम कर। तो द बिलीफ वॉज कि एक्टर जो होता है वो एथलीट फिलोसोफर होना चाहिए। ऐसे एन एक्टर शुड बी एन एथलीट फिलोसोफर। तो उसकी दिमाग फिलोसोफर की तरह होना चाहिए और उसका बॉडी एथलीट की तरह होना चाहिए ना। तो एनएसडी दोनों तरह से आपको, मैंने एक्टिंग नहीं किया क्योंकि मैं एथलीट नहीं होना चाह रहा था, सिर्फ फिलोसोफर में खुश था। लेकिन लेकिन एनएसडी उस तरह से तैयार करती है। तो आपको मार्शल आर्ट्स भी करवा रहे हैं वो लोग, मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग मिल रही है, उसी समय पे आपको आपको कुछ इंटेलेक्चुअल सिखाया भी जा रहा है, आपको मॉडर्न इंडियन ड्रामा सिखाया जा रहा है, आपको मॉडर्न वेस्टर्न ड्रामा सिखाया जा रहा है, आपको एंशियंट इंडियन ड्रामा, आपको एंशियंट वेस्टर्न ड्रामा, ये साथ में सिखाया जा रहा है। उसके अलावा आपको, तो ये सब आप एक ही समय पे संस्कृत थिएटर और एक ही समय पे ग्रीक थिएटर की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता चल रहा है कि हाँ यार, संस्कृत थिएटर में भरत मुनि ने ये बातें कही थी, लेकिन वहां पे जाके कुछ और बात हो रही है। रशियन थिएटर, मॉडर्न मॉडर्न वेस्टर्न थिएटर में रशियन थिएटर का बहुत बड़ा हाथ है, स्टैनिस्लवस्की और गोरकी और जितने भी चेखव, एंटन चेखव, इस तरह। तो ये सारी चीजें भी आपको आपको सिखाई जा रही है और इनपुट के तौर पे सिखाई जा रही है। और आपको उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं जा रही है, आपको बनना है, आपको गोरकी का कैरेक्टर बनना है, आपको उस तरह के कपड़े पहन के उस सर्दी का एहसास करते हुए आपको आपको घूमना है, और उस डिप्रेशन में जाना है। लोअर डेप्थ जैसे प्ले के डिप्रेशन में आपको जाना है कि कैसे वो पोस्ट रेवोल्यूशन रशिया में क्या हो रहा था। या आपको एक शेक्सपियरन कपड़े पहन के, या आपको एक संस्कृत नाटक के कपड़े पहन के आपको वो बनना है। तो आप आप इस पूरी जर्नी में जा रहे हो। उसके अलावा देन दिल्ली, मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लासिक्स लाइक शेक्सपियर। लाइक मैंने जब शेक्सपियर, आई रेड इट इन इंग्लिश लिटरेचर क्लास, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैंने थिएटर में उसको परफॉर्म होते हुए देखा, मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा यार, ये तो कितना मॉडर्न बातें करता है आदमी। मॉडर्न मतलब मॉडर्न, जिसको जो जो बिल्कुल राइट बातें हैं, जो सही बातें हैं। और उसमें सब कुछ है। उसमें वो बिल्कुल सड़क के आदमी से बात कर रहा है। वो लिटरेरी भी है, वो गाली भी देता है। उसके इसमें सेक्स, डिबॉचरी, सब कुछ है भरपूर। पॉपुलिस्ट एलिमेंट्स कितने ज्यादा है उसके अंदर। तो ये सब चीजें जब देखने लगे तो यार मुझे लगा कि ये तो मुझे कोई दिखाता नहीं, कभी कभी नहीं पता लगता कि शेक्सपियर का ऐसा इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। हम्म। एनएसडी गिव्स यू द बेसिकली एनी इंस्टीट्यूट। एनएसडी में मैं पढ़ा हूं, इसलिए एनएसडी की द राइट टू फेल, द अपॉर्चुनिटी टू फेल, डू समथिंग एंड फेल, and nobody is judging you, and nobody is saying anything to you, and you are not out of the job, and you are not this thing. So experiment, so don't be afraid, like in art सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जो एक एनएसडी ने मुझे पेंटिंग्स, जो मेरा आंखें बंद थी जिसकी तरफ, जो इंदौर में मैं मुझे कभी मिला नहीं, क्योंकि मराठी हूं और फिर विजुअल ट्रेडिशन उतना नहीं है, सब ओरल ट्रेडिशन में ही चलती है, क्लासिकल म्यूजिक सब। तो कान तैयार है, आंखें नहीं है। तो वो जैसे मैंने देखी, जैसे बंगाली दोस्त आते थे तो उनकी आंखें तैयार थी।
एवरीबॉडी कुड ड्रॉ, एवरीबॉडी कुड डू समथिंग। जैसे मेरे केरला से दोस्त आते थे, राजस्थान से दोस्त, तो आंखें तैयार थी। हम लोगों की आंखें बिल्कुल नहीं, मतलब नीला लगाना है, काला लगाना है, कुछ नहीं पता। पेंटिंग्स की दुनिया में ले गए मुझे वहां पे। पेंटिंग्स की दुनिया में आर्ट एप्रिसिएशन वहां पे होता है, एस्थेटिक्स का एक क्लास होता है। देयर यूज्ड टू बी क्लास ऑन एस्थेटिक्स। वो हमको पूरी दुनिया की पेंटिंग सिखाई जाती थी उसमें, कि इसको कैसे देखना है, इसको कैसे अप्रिशिएट करना है, क्या हो रहा है, इजम्स में कैसे चीजें चेंज हो रही है। Wow, this line was very beautiful about कान तैयार थे बट आंखें तैयार नहीं थी. आगे थे। And the way the world opened up. So, Anand, we've spoken about music a lot over the years, getting together and listening to music, singing songs, all of that. आपसे गवाएंगे भी थोड़ा सा, I think. अब बहुत देर, I think this is the longest we have gone speaking to Swanand without Swanand breaking into song. So I think that's I very remember, important. I remember our evening. I remember we watching Devdi and going to Anurag. Yeah, we spoke about that on this podcast in the first episode. But Swanand, many times when we've spoken about music also, like when we speak about your musical big influences, I think largely in terms of lyric, you speak about Sahil Ludhianvi, and but you've also spoken about in the same breath, like you mentioned Beatles, थोड़ी देर पहले, and you've said Beatles and Bob Dylan, and I'm very curious कि मतलब आप जब ये अलग टाइप के म्यूजिक सुनते हुए आ रहे थे एंड व्हेन दिस ओपनड इट अप टू यू, हाउ वाज दैट, हाउ डिड दीज डू यू रिमेम्बर कि बीटल्स का कौन सा आपने जो बताया से ऑडियो कैसेट सुना आपने, और उसके बाद कोई चीजों में आपको लगा कि अच्छा ये भी करा जा सकता है, और आपके सेंसिबिलिटी के साथ ये भी कैसे मैच हो रहा है या सेंसिबिलिटी को एक्सपैंड कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, अब जस्ट मैं अबाउट जैसे, अदर काइंड ऑफ म्यूजिक. नो नो, आई जस्ट से मेरे जिंदगी में ये लोग लेट आए। बॉब डिलन केम वेरी लेट इन माय लाइफ, लाइक, बट व्हेन, सो माय म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस वर राइट, बट व्हाट हैपेंड, मैंने बीटल्स के जो एल्बम सुने थे, वो था यार जिसमें वो गाने थे, मतलब वो ओ डार्लिंग प्लीज बिलीव मी, आई विल हम्म नेवर डू यू नो हार्म, हम्म हम्म उसमें वो था लेट बी, हम्म तो उस वो तो वो उस तरह से काफी सारी चीजें सुननी की थी। हे जूड फिर सुनना शुरू किया, फिर बहुत सारा सुना, जितना कैसेट में मिलता था सुना। बॉब डिलन मेरे जिंदगी में आया मैं जब दिल्ली आया उसके बाद। बट म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस में मेरे ऊपर सबसे मैंने साहिर लुधियानवी की बात की, लेकिन मेरे लिरिकल इसमें मैंने गुलजार साहब को सुना था। मैं गुलजार साहब को बहुत पसंद करता था, बट आई एम जस्ट गोइंग हियर हियर। प्लीज. इंदौर में एक एनएसडी की वर्कशॉप हुई, उसमें आशीष विद्यार्थी आया था और उसने मुझे एक गाना सुनाया। वो गाना था पीयूष मिश्रा का। वो था फिल्म, वो था शो, वो प्ले था जब शहर हमारा सोता है, जिसके सारे गाने बाद में गुलाल के गाने बने। हम्म और उसमें से एक गाना जो मैंने गाया भी है, जब शहर हमारा सोता है, वो आशीष ने गाया। हम्म और मैं सच बताऊं, इतने सब इन्फ्लुएंसेस के बाद भी मुझे लगा कि ये है, दिस इज इट। क्योंकि उसके दो गाने थे उसमें, जब शहर हमारा। इतनी मॉडर्न तरीके से चीजों को देखना इंडिया में कोई उस तरह से कोई, और इतना रेबेलियस और इतना क्रास और इतना सब कुछ ना, मतलब उसके एक हाथ में गर्म मांस का लोथड़ा होता है, इस तरह की लिरिक्स ना, वो उस तरह से सुनी नहीं गई थी। तो वो मुझे बहुत, और उसने एक और गाना सुनाया था, क्या है क्या है क्या है ये, क्या 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 है। तो ये दोनों गाने सुन के मैं अट्रैक्ट हुआ और मैं एक्ट वन में आ गया दिल्ली में, आशीष के पीछे पड़ पड़ के। और वहां पे मुझे पीयूष मिश्रा को काम करते हुए देखा मैंने, और मुझे लगा कि वो एक मिथ ब्रेकिंग होती है ना, कि यार कोई एक गुलजार साहब होते हैं जो, या किसी के इंटरव्यू देखो बड़े बड़े लोगों के, तो वो बोलते थे कि साहब एकांत में जाना पड़ता है, आमद आती है। हम्म यहाँ पे पीयूष मिश्रा जैसा का ये था कि मुझे अभी गाना चाहिए प्ले में, या कोने में जाके लिख के ला। वो उधर जाता था, कर 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 लिख के लाता था और कहता था जब शहर हमारा सोता है। आपको लगता था कि यार ये इतना इतना डुएबल है, इतना आसान है, इतना किया जा सकता है। और वहां पे फिर मैंने वो मेरे मेन इन्फ्लुएंसेस बने। वहां पे मैंने सीखना शुरू किया, फिर मैंने सुनना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया ये किसकी तरह करते हैं, ये किसकी तरह। तो फिर वहाँ एनके शर्मा, मेरा जो जो एक्ट वन का डायरेक्टर है, जिसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं, उसने मुझे बोला कि तू बॉब डिलन सुन। फिर उसने मुझे और भी चीजें सुनने को दी। मैंने एक्चुअली पीट सीगर्स भी सुना बहुत उस समय। हम्म
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उसके गाने आज भी, मतलब आई नोबडी टॉक्स अबाउट देम, बट ही वाज कमिटेड रेवोल्यूशनरी पीपल, यू नो, हु वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड. बॉब डिलन्स जर्नी वाज आल्सो लाइक द सेम, यू नो, लाइक ही वाज डूइंग द कंट्री म्यूजिक एंड एवरी टाइम. और मुझे उसमें जो रेजोनेट किया, सच बताऊं तो पॉलिटिक्स, मेन चीज जो थी कि पॉलिटिक्स को कूल बनाना, और किसी एक रोमांटिसाइज करना चीजों को, कि भाई अच्छे बनो. दुनिया बुरी है तो उसको, लोगों को सिर्फ ये कहना है कि अच्छे बनो, इतना ही सिंपल ही पॉलिटिक्स था यार. बाकी उसको ये लोग नाम देते हैं कि ये लेफ्ट है, राइट है. मुझे लगता है पॉलिटिक्स एक ही था. पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ यू, बेसिकली यू टॉक अबाउट कि बी गुड टू एवरीवन, यू नो, कास्ट, क्रीड, कलर, कुछ भी हो, आप बी गुड टू एवरीवन एंड डोंट किल एंड डोंट डाई. सो दोस थिंग्स. तो उसमें मुझे जो गाने, मुझे बॉब डिलन के, और जो सबको ही सबसे ज्यादा पसंद आया हुआ वो गाना होगा उस जमाने में, जो जो सदियों तक पसंद किया जाएगा, वो गाना है द आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड. उसके आगे कोई गाना मुझे कभी, उसके आगे का कोई गाना, जैसे साहिर लुधियानवी का एक गाना है अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, और बॉब डिलन का गाना है द आंसर माय फ्रेंड इज ब्लोइंग इन द विंड. मुझे नहीं लगता मेरे लिए इन गानों के ऊपर कोई गाना बना है. अ, तो उसके कि कितनी बार ये करना पड़ेगा. मैंने भी एक अभी एक उसको एक ट्रिब्यूट देते हुए गाना बनाया है, वो सुधीर का एक शो है, उसमें आएगा होपफुली. उतना उतना अच्छा नहीं है पर है. अ, हो जाए तो थोड़ा सा। नहीं, वो तो मुझे मैं भी उसको तो वो नहीं सुना पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि एक तो मुझे याद भी नहीं है, और अ, पर मैं गुनगुना देता हूँ उसको कि सवाल सवाल हजारों हैं, जवाब कहीं भी नहीं, वो कहते जवाब हवाओं में है, यारों ये भी सच नहीं. एक उसको ट्विस्ट मारा है मैंने, और उसका नाम लेके किया है, मतलब ऐसे मैं आई एम नॉट. स्वानंद, जैसा तुम कह रहे थे कि जब तुम एनएसडी में आए तो एक तरह से दुनिया खुल गई तुम्हारे लिए। एक तरफ दुनिया खुल गई, दूसरी तरफ सिमट के तुम्हारी दुनिया में आ गई और तुम्हें अंदाजा होने लगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी खूबसूरत है। तो इतने सारे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, कंपोजर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं। बचपन से सुनते-सुनते तुम्हारा अपना टेस्ट, अपनी स्टाइल, अपना रुझान अ, वो तय हुआ होगा। आज आई एम क्यूरियस व्हाट ड्रॉज यू टू अ लिरिसिस्ट और अ कंपोजर? मतलब जितने अलग-अलग तरह के लिरिसिस्ट और कंपोजर्स तुम्हें पसंद हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कॉमन हैं? आई आस्क दिस क्वेश्चन, मतलब आई अपने आप से भी मैं ये सवाल कई बार करता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा नहीं लगता तो क्यों अच्छा नहीं लगता. और मुझे अच्छा सिर्फ एक ही चीज लगता है कि ऑनेस्टी बहुत मायने रखती है, कि आप जो कहना चाह रहे हो उसकी क्लैरिटी, जो कहना चाह रहे हो उसके अंदर, एक तो पहली बात कुछ कहना चाह रहे हो, उस कहना चाह रहे हो कुछ फेक नहीं कर रहे हो. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू पीपल, एंड what I have always loved in people is the simplicity, the ease. कोई भी बात को बहुत आसानी से बताना, चाहे साहिर ने बताई हो, चाहे गुलजार ने बताई हो, चाहे जावेद साहब ने बताई हो, चाहे किसी ने बताई हो, जब भी कोई बात बहुत, पंछी नदियां पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके. उम, मुझे लगता है कि इतनी बढ़िया बात इतनी आसानी से कोई पोएट कह सकता है, या कोई म्यूजिशियन है जो जैसे 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 रहमान हो या विशाल भारद्वाज हो. मुझे विशाल का म्यूजिक हमारे टाइम में बहुत अच्छा लगता है. और पुराने ज़माने से लेके अभी तक, यू नो, व्हाट व्हाट स्टेज फॉरएवर और टिल वी लिव विथ अस इज़ वो जो शिद्दत है जिससे वो काम किया गया. मुझे लगता है उस जुनून की, उस शिद्दत की मुझे मुझे वैल्यू होती है, बाकी किसी चीज़ की नहीं होती. मुझे बहुत अच्छे-अच्छे गाने लगते हैं, लेकिन बहुत स्मार्ट लगते हैं. ऐसा लगता है बहुत स्मार्टली किया है, बहुत टिक मार्क किए हैं, या दिस वे, दैट वे, दिस वे, दैट वे. जैसे मोज़ार्ट है, अगर आप कभी भी सुनोगे, आपको उसमें 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 मज़े आ जाएँगे, उसमें मज़े ही आते हैं.
उसमें आपको कभी ये नहीं होता, कभी ये नहीं लगता कि अरे यार ये तो मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, ये बोर हो गया हूँ मैं इसको सुन के, कभी नहीं होता ऐसा। One of the things I've learned as a writer is um, I have learned how to read from my literary heroes, right? And one key thing I've learned from them is to always read with a pen in hand. Hmm. Because you can read, you can imbibe impressions, but if you're not making your notes in the margins, you're not doing justice to a book. And now, every ओह! once in a while, because I read a lot, every once in a while मैं लेट के पढ़ने लगूंगी, हाथ में पेन नहीं होगी, but I will eventually chide myself and I will get the pen, and once the pen comes in my hand, I start noticing things that I was not noticing earlier. ब्रिलियंट। तो तो उसी हिसाब से मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि do you make notes when you're listening to compositions or listening to lyrics or reading? Do you find yourself writing? I sadly I don't, but I should. I really like this idea because again मुझे सच में ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि कई बारी कई चीज़ें निकल जाती हैं और कई चीज़ें आप नोटिस नहीं करते और कई चीज़ें आपको ख़्याल आती है लेकिन आप मैं बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन पे आप भरोसा करते हो कि ये सब याद रखेगा या ये सब नोटिस कर रहा है या सब तो ऐसा नहीं होता है। तो आई डोंट डू एनीथिंग लाइक बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट one trait of Kumar Gandharv's was this एंड ही वुड लाइक मेरे को अभी भी पता है कि उनकी एक किताब थी बड़ी फेमस मराठी की किताब है रामनगरी नाम है उसका उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी अगर राजा तुमको याद होगा तो अमोल पालेकर सुहासिनी मूले की एक फिल्म थी देयर वाज दिस वो बहुत बहुत बड़े थिएटर एक्टर थे राम नगरकर हु वाज इसेंशियली फ्रॉम अ नाई नाई खानदान बार्बर और वो बने बाद में आके वो थिएटर करने लगे एंड देन दादा कुंडके एंड ऑल दैट एंड ही वाज लाइक टुगेदर नीरू फुले एंड ही वाज टुगेदर एंड दे वर डूइंग द महाराष्ट्र सेवा दल का थिएटर एंड तमाशा एंड ऑल दैट एंड ही वाज तो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड रामनगरी तो मैं मुझे कला पिनी पिन्नुताई जिसको बोलता हूँ उसने मुझे वो किताब वो वहाँ कुमार जी की लाइब्रेरी से बहुत किताबें आती थी मेरे पास हाँ उनकी लाइब्रेरी बड़ी बड़ी थी बड़ी अच्छी थी उसमें अमर चित्रकथा भी आती थी भरपूर तो वहाँ से वो किताब मेरे पास आई एंड उसमें मैंने देखा कि कुमार जी के नोट्स हैं और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते थे कि जैसे जहाँ-जहाँ पे मतलब उन्होंने डेफ़िनिटली वो दोबारा पढ़ी होगी या तिबारा पढ़ी होगी। जब उसने जहाँ-जहाँ पे रामनगरकर ने एक्टिंग करने को या ज़िंदगी जीने को नाचना कहा है, कि हमें हमें पैसे मिले हम नाच के आ गए। तो जहाँ-जहाँ पे भी वो उस मेटाफर का यूज़ किया हुआ है, उसको अंडरलाइन किया हुआ था, एक अलग तरीके से। एंड ही वाज़ तो आई थॉट याह! दिस इज़ कीन रीडिंग एंड आई टोटली एग्री आई शुड डू दिस नाउ। क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर मुझे कभी मेरे घर में कभी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं बजा। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और म्यूज़िक पीछे बज रहा है, तो म्यूज़िक बंद हो जाएगा। माय फादर से अगर सुनना है तो बैठ के सुनो। Hmm. तो फिर म्यूज़िक है। तो फिर आप तो उसकी वजह से मैं उस तरह से मेरे साथ ये नहीं होता कि मुझे कुछ काम कर रहा हूँ। मुझे जिम में लोग म्यूज़िक लगाते हैं तो अच्छा लगता है, मेरा लगाते हैं तो अच्छा लगता है लेकिन लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आता वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्योंकि और या फिर अब उस तरह का म्यूज़िक भी आता है लेकिन कुछ अच्छा अगर आप सुन रहे हो, अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो उसमें उसमें वर्ड्स है, उसमें म्यूज़िकल नोट्स है, उसमें उसमें इंस्ट्रूमेंट्स बजे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उनको कब एप्रिशिएट करोगे? तो आई विल डू दिस नाउ या बट कमिंग टू योर राइटिंग स्वानंद, आपकी जो किताब थी आप कमाई, उसमें आपने हर चीज पे कविता लिखी है, इतनी माइन्यूट चीजों पे कविता लिखी है, एक्सेल शीट्स पे कविता है, फ्राइडे शाम पे कविता है। तो एक तो आप कमाई से कुछ सुनाइए हमें, वी वुड लव दैट। एंड द अदर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज, ऐसे कौन से राइटर्स थे, पोएट्स थे, जिनको देख के आपको लगा कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी एक राइम है, एक पोएट्री ढूंढा जा सकता है? मतलब पीयूष कुड हैव बीन जैसे वन ऑफ देम, बट अदर पीपल। जो बहुत ज़्यादा लोग पोएट्री में जिन लोगों से मैंने बहुत प्रभावित हुआ हूँ, उनमें एक मेरे ऊपर जो सीधा-सीधा प्रभाव है हिंदी कविता कवियों में से भवानी प्रसाद मिश्र नाम के एक कवि हैं, उनका बहुत प्रभाव है। उनकी रिदम बहुत बहुत ही बढ़िया है, उनकी रिदम मतलब उनकी जो
उनकी जो कहने की स्टाइल है उसमें बहुत ही खूबसूरत एक रिदम है। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में ऊँघते हुए से अनबने जंगल। घास चुप है, काश चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, ये खिलौने घने जंगल। और बहुत बहुत सुंदरता से वो ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं। दूसरे मुझे बहुत पसंद है वो इब्न इंशा है। इब्न इंशा इज़ वन पोएट हू पाकिस्तानी पोएट है वैसे तो कहने को, लेकिन उनके इसमें बहुत सारे उर्दू अवधी ब्रज भाषा के वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे। जले तो जलाओ गोरी प्रीत का अलाओ गोरी अभी न बुझाओ गोरी अभी से बुझाओ ना। प्रीत में बिजोग भी है, भावना का सोग भी है, प्रीत बुरा रोग भी है, कभी आजमाओ ना। तो उसमें भावना का सोग भी है, तो वो उनके, और उन्होंने जितनी तरह से चांद को इंटरप्रेट किया है उतना। और तीसरे फैज साहब है, गुलजार साहब है। गुलजार साहब ने भी रोजमर्रा के वाक्यों को और लफ्ज़ों को अल्फ़ाज़ों को, लफ्ज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपने इसमें अपने अपने गानों में, अपनी कविता में पिरोया है। मतलब चवन्नी, अठन्नी या ये तूने वो गाना जो है किनारा फ़िल्म का, तूने खोस ली है चाबियाँ घर की। इट्स अ Hmm. सीन। और मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है वो भिजवा दो। इट्स अ सीन। It's a love letter from a, it's a very material love letter, like which becomes into a metaphorical love letter. और वैसे ही मुझे फैज साहब ने दिल के दर्द पे उनके हार्ट अटैक पे नज्म लिखी है। Hmm. अब मुझे याद नहीं वो नज्म, लेकिन उन्होंने हार्ट अटैक पे लिखी। जब हार्ट अटैक हो गया उनको, वो हॉस्पिटल में थे, उन्होंने एक नज्म लिखी ऑन ऑन हिज हार्ट अटैक। तो वो वहाँ से इन्फ्लुएंस आता है। मुझे लगता है कि कविता आती ही वहाँ से है, होनी आनी ही वहाँ से चाहिए, जो रोज़मर्रा की आपकी आपकी ज़िंदगी को आप कैसे देखते हो। मराठी की एक बहुत बड़ी पोएट रही है जो बिल्कुल ही शी वाज़ अ विलेज वुमन। मतलब उन्होंने कभी उनका कुछ लिखा हुआ भी उनके बेटे ने लिखा। शी यूज्ड टू गो इनटू, खेतों में जाती थी और वो चक्की पीसते हुए जो बोली जाती थी, उनका नाम था बहिणाबाई चौधरी। उनके बेटे ने उनकी कविताओं को पूरा लिखा, जो-जो उसको याद थी। सारी तो वो भी उसको भी याद नहीं थी, लेकिन उसने जो-जो याद थी वो लिखी, और वो कविताएँ जब हाथ में आई महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र उड़ गया कि इतना ज़्यादा इन डेप्थ और मॉडर्न रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये औरत उठा सकती है। तो मेरे इन्फ्लुएंसेस ऐसे ही है, क्योंकि अ, सिंपल मराठी की एक उनकी लाइन है। मतलब वो शहर से गुजर रही है और वो शहर को देख के ऊपर बातें कर रही है कि ये दारू पी के यहाँ पड़ा हुआ है और दारू कितनी बुरी चीज है, और फिर वहाँ ये टेम्पल है और वहाँ पे ये बैठा हुआ है, और वो उसके बारे में डिस्कस करती जा रही है। और वहाँ पे अचानक एक टेम्पल के सामने जाती है, वो मारवाड़ी का टेम्पल है वहाँ पे। तो उसमें वो दो लाइनें उनकी जो मेरे माइंड में, मेरे दो दो लाइनें रह जाती है माइंड में कि सोन्या रुपयानं जडला मारवाड्याचा बालाजी। वो बालाजी की मूर्ति है। तो सोना रूपा मतलब सोने चांदी से जड़ा हुआ है मारवाड़ी का बालाजी। शेतकऱ्याचा विठोबा पाना फुला मंदिराजी। शेतकरी मतलब फार्मर का जो विठोबा है, वो फूल पत्तों में खुश है। सो ऐसे मुझे वो हिट किया कि मुझे वहाँ मेरे साथ ये होता है कि व्हेन आई रीड समथिंग लाइक दिस, आई वांट टू रीच देयर समहाउ। यार ये इतनी सच्ची और इतनी, जैसे इसी के बारे में अब लोग मुझे सोशलिस्ट भी बोलते हैं इस चक्कर में, लेकिन चांद के बारे में बात करते हुए मजाज साहब ने कहा है कि अ, पतझड़ की आड़ से निकला वो पीला माहताब। पत्तों की आड़, एक मिनट, जस्ट सेकंड, आई जस्ट चेक Yeah, दिस। please. दिस सिमिलर काइंड ऑफ सिमिली मजाज साहब भी यूज करते हैं अपने, ए गमे दिल क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं मैं। हाँ, मतलब वो जो उनकी जिसके ऊपर मैंने खोया खोया चांद का गाना जिसमें लिया है ना, कि जी में आता है मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे जी. नोच लूं, उसी का अ, एक उसी नज्म का एक 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 पैराग्राफ है जो मुझे लगता है कि एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा जैसे बनी है की किताब। वो पीला महताब जो निकला हुआ है, पीला चांद,
वो किसी मुल्ला का अमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब। मुफलिस की जवानी और बेवा का शबाब, इस दोनों का कोई मतलब नहीं है, हम्म, और इस दोनों का बहुत मतलब है। सो इट्स ठक करके लगता है आपको कि यार ये भाई ये कुछ अलग ही बात करता है, और फिर वो आगे कहता है कि मतलब बढ़ के इस इंदर सभा का साजो सामा फूक दूं, उसका गुलशन फूकता, उस शबिस्ता फूक दूं, जी में आता है मुर्दा चांद तारे नौशूर, एंड देन बिकम्स एंग्री एंड वेरी वेरी एंग्री। और मजाज के बारे में ये कहा जाता था कि उनको, मतलब उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनको इनकलाबी भेड़िए उठा ले गए, मतलब ही वाज अ लव पोएट, बट उनको रेवोल्यूशनरीज उठा के ले गए। बट आई थिंक दैट्स सो अनट्रू। इनकलाब में ही प्यार है। But इनकलाब में मतलब we can't talk about socialism and Chand without talking about Piyush's एक बगल में चांद होगा, एक बगल में एक चांद बगल में होगा, एक बगल में एक रोट। बगल में रोटियां। और जितिश कल्लत ने एक पेंटिंग की थी लूनर रोटीज, जिसमें पूरी उसने चांद का हाँ, मूवमेंट आई रोटियों के उसमें बताया था। एंड दे बोथ दीज थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ द वेल्श एंड इंग्लिश ट्रेड यूनियन सॉन्ग which is bread and roses. We want ब्रेड bread, एंड but we रोजेस। also want ओह, roses. But one quick thing, Swanand, I wanted to read out to you. When we talk about the poetry of the mundane, I'm rereading Dostoevsky as a good Calcutan. I must reread one Russian writer every year. And this is, of course, Notes from Underground. Ha ha ha, you will be finding enjoyment in toothache next. You cry with a laugh. Well, even in toothache, there is enjoyment, I answer. I had toothache for a whole month, and I know there is. In that case, of course, people are not spiteful in silence, but moan. But they are not candid moans, they are malignant moans. And the malignancy is the whole point. The enjoyment of the sufferer finds expression in those moans. If he did not feel enjoyment in them, he would not moan. It is a good example, gentlemen, and I will develop it. Those moans express in the first place all the aimlessness of your pain, which is so humiliating to your consciousness. The whole legal system of nature, on which you spit disdainfully, of course, but from which you suffer all the same, while she does not. They express the consciousness that you have no enemy to punish, but that you have pain. The consciousness that despite all possible Wagenheims, you are in complete slavery to your teeth. Amazing. Amazing. The way अमेजिंग। you could write beautiful. about a But toothache. listen, I'm just going to अरे ये pause, तो बिल्कुल hit the moon so directly there, and spoke about Jitish and spoke about Piyush, and Swanand spoke very briefly about the Khoya Khoya Chand song. But that is, one of, as you know, we have often done on many occasions, that is one of my absolute favorites of your oeuvre. So please, a little bit of the Khoya Khoya Chand song you wrote for Sudhir. ओके, I'll sing that one. आज शब जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल। ये मंजिलें भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल, क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल। जिंदगी सवालों के जवाब ढूंढने चली, जवाब में सवालों की एक लंबी सी लड़ी मिली, सवाल ही सवाल है सूझती नहीं गली, के आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली। क्या बात है, क्या बात है। Beautiful, beautiful. Thank you so much. जब सुधीर की बात चल रही है स्वानंद, तो you've also worked with him as an assistant director, and I'm I'm intrigued by this journey of this boy who is watching these bad video cassettes and trying to figure out what cinema really is and what it can be, and then working with Sudhir Mishra, who is one of those great directors in our cinema, who kind of bridges that
art cinema and commercial cinema gap, if you will, and in many ways creates cinema that has meaning, that has politics, but it also has ras. तो उस हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछूं कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनको तुम बार-बार देखते हो या जिनमें जितनी बार तुम देखते हो एक नई सुराग मिलता है, कोई एक नई चीज़ मिलती है? या ऐसे कुछ डायरेक्टर्स जिनका काम बार-बार देखते हो तुम? हाँ, मैं देखता हूँ, बहुत सारी फ़िल्में ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ, बहुत बहुत बार-बार देखता हूँ और मैं चला जाता हूँ उनको देखने के लिए। मैं फेलिनी को मैं देखने चला जाता हूँ कब जब भी मेरे मुझे कुछ भी ऐसा लगता है। उसके अलावा मैं सुधीर मिश्रा की कुछ फ़िल्में वापस वापस मैं एक्चुअली ऐसे बहुत सारे हैं, मैं किसका नाम लूँ? उम एक्चुअली क्या अभी मैंने रिसेंटली क्या देखा, मैं गॉडफ़ादर कितनी बार देखता हूँ यार, कितनी बार देखता हूँ मैं। अभी फिर से देखी मैंने, तीनों देखी। फिर मैं उसको गॉडफ़ादर के ऊपर बना हुआ शो देख लेता हूँ जाके और फिर मैं गॉडफ़ादर देख लेता हूँ। एक्चुअली शायद वो मेरा कहीं अंदर में मेरे चल रहा है कि वो फ़िल्म बनानी है इसलिए शायद दैट्स व्हाई इट्स अट्रैक्टिंग मी एंड इट्स दिस थिंग डूइंग मी। बट उसके अलावा आई लव लव वाचिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। पूरी ज़िंदगी तो मैंने वाव द रीरन में ही फ़िल्में देख के गुज़ारी है। अ, पुरानी चार्ली चैपलिन देख लो वापस जाके कुछ भी, ग्रेट डिक्टेटर तो मेरी बहुत फ़ेवरेट है। मुझे चार्ली चैपलिन मेरा बहुत बहुत अंदर में मेरे बसा हुआ है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। एनीवे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं। अ, स्वरन बहुत साल पहले मुझे याद है हम लोग आपका जब ब्रेक थ्रू हिट आया था बावरा मन अ, उस वक़्त वो दैट फ्रॉम हज़ारों ख्वाहिशें व्हिच इज़ अ फिल्म वी ऑल फेल इन लव विथ एंड दैट मोमेंट रियली टेक्स इट टू अ पोएटिक क्रेसेंडो एट द एंड आपके आपके गाने से। तो जब हमने उसके बारे में बाद में अ, नशे में धुत बैठकर डिस्कशंस किए, तब आपने बोला कि ये गाना आपने ऐसे ही आपके दिमाग में आया रात के टाइम बॉम्बे की सड़कों में आप ऑटो रिक्शा में घूम रहे थे और जी, आपको बिल्कुल। बाबरा मन का ख्याल आया। आई रिमेंबर दिस सो क्लियरली बिकॉज़ आई थॉट कि something so poetic, is there a brief, is there not, and the fact that this just comes in, sometimes it just नो finds its way, the inspiration finds its way and you were thinking about your own cinematic dreams कि ये कितना करेक्ट। मतलब पागलपन है और वो एप्लीकेबल है कितने लोगों के साथ। नहीं समटाइम्स वही होता है, समटाइम्स मतलब बिल्कुल तुमने सही कहा कि कोई ब्रीफ नहीं होता ज़िंदगी में कई बारी कई चीज़ों को, ब्रीफ तो ये होता है कि आप ज़िंदगी जी रहे हो। पर एक ख़्याल आपको आया और वो मैंने उस ख़्याल को ग्रो होते हुए देखा। मतलब मैंने उस ख़्याल को मेरा सिर्फ़ पर्सनल था वो बाबरामन देखने जब चला एक मैं तब तो लिरिक राइटर भी नहीं बना था। मैंने किसी को मैं गाना तो गाता ही नहीं था। मैंने थिएटर में यहाँ-वहाँ पे 2-4 गाने गाए होंगे, ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन वो गाना एक मैं एक्चुअली मुझे अभी भी याद है कि जब मैं रिक्शा में जा रहा था, आई वाज़ लाउडली लाफिंग एट माइ सेल्फ एंड मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करने आ गए यार इस शहर में। ट्रेन में इधर भीड़-भड़क्का, कच-पच कच-पच क्या है ये? ऐसा कुछ माइंडसेट रहा होगा शायद और उसमें ये 2 लाइनें 3 लाइनें मेरे मेरे मन में आई, मैंने ऐसे ही गुनगुनाई और फिर मैं मेरे रूम में आया और मेरा रूममेट था वो हर्ष खुराना नाम है उसका, तो उसको मैंने सुनाया कि मैंने कहा यार ये 2 लाइनें ऐसी लिखी है मैंने। बोला यार बहुत बढ़िया किरकिर है, पूरा लिख दे। तो मैंने 2-4 दिन में 5 दिन में उसको गुनगुना के थोड़ा वैसे करके उसको आई रोट द होल सॉन्ग। देन अभी भी याद है मुझे दूसरी जो रितेश शाह जो राइटर है ना अभी, हुँ, वो उसके घर पे हमारे यहाँ पे हम सब साथ में ही रहते थे आजू-बाजू में और कॉमन किचन होता था यार, कभी इसके घर पे खाना, कभी उसके घर पे खाना। हुँ। तो वहाँ उसके घर पे उस दिन खाना था तो हम वहाँ गए खाना खाने तो हर्ष ने बोला यार स्वानंद ने बहुत अच्छा कुछ लिखा है। तो वो गाना मैंने उसको रितेश को सुनाया। तो वो हुआ कि भाई रोज़ फिर जब भी मिलो वो रितेश के यहाँ पे, फिर रितेश के यहाँ पे जितने भी लोग थे उनके यहाँ पे, फिर ऐसे करते वो एक अंडरग्राउंड में स्प्रेड करता चला गया गाना। मतलब मैं जहाँ जाता था वहाँ में मुझे ये फ़िल्म में आने के बहुत पहले की बात है सुधीर। फिर जब मैंने तो मुझे उस गाने की जर्नी में देख के मुझे अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि देयर वाज़ सम ट्रुथ व्हिच केम थ्रू मी। आई एम नॉट कैपेबल ऑफ इफ मेरा खुद के इंटेलेक्ट पे मैं भरोसा करूँ तो मुझे नहीं मालूम कि मैं दोबारा वैसा कुछ अगर लिख सकता तो 2 10 गाने लिख देता यार उतने सच्चे।
पर वो नहीं हुआ, वो उस एक एक कुछ एक चीज़ जुड़ी और उसने उस चीज़ को निकाला बाहर, और वो उसकी जर्नी अब मैं देखता हूँ तो लगता है कि हाँ यार, कुछ तो था जो इतना सच्चा है कि आज भी मैं उसके बारे में लोग बात करते हैं, आज भी लोग सुनते हैं। मुझे याद है सबसे पहली बार मैंने ये गाना फ़िल्म के बहुत आने के बहुत पहले सुना था, जहाँ तक मुझे याद है पृथ्वी थिएटर में। हाँ, किसी हाँ, हाँ। टेबल पे बैठ के तुम ये गाना गा रहे थे, मेरे हाँ, ख़्याल से हाँ, केके हाँ। वगैरह का टेबल था और मैंने पहली बार वो गाना सुना था। उसके बाद तुम जब भी कभी घर आते थे तो तुमसे ये गाना गवाया जाता था। गँवाया जाता फ़िल्म था। का उस समय नामो-निशान नहीं था, हम पूछा करते थे नहीं, कभी-कभी कब आएगी फ़िल्म, क्या है, कुछ पता भी नहीं था। ख़ैर इट्स वन ऑफ दोज़ गोल्डन मोमेंट्स जहाँ गाना इतना अच्छा था और फ़िल्म भी इतनी अच्छी निकली एंड वो बोथ डिफाइंड टू सेपरेट जनरेशंस इन अ वे। कितनी तरह से उस गाने को इंटरप्रेट किया हुआ है लोगों ने। मुझे मेधा पाटकर एक बार बोली कि मैं ये गाना सुनती हूँ जब मैं वहाँ से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे! इस तरह से जेएनयू में जाओ तो जेएनयू में गाना सुना जा रहा है, डीयू में जाओ तो डीयू में गाना सुना जा रहा है। इंदौर के आरएसएस के दोस्तों से मिले तो वो भी सुनते हैं। तो And it encapsulates the fact that inqilab and romance are not two separate नॉट टू sides of the सेपरेट थिंग। same. Yeah. या, या, इट्स रोमांस, इट्स रोमांस। It's romance, it's in club. But you know, one of the things that I admire so much about you, Swan, and then also relate to so much about you is the fact that you've refused to be boxed in any way. You know, you in your own way, you're a polymath. You're an actor, you are a singer, you're a composer, you're a lyricist, you're a writer, you're a theater director. You've not kind of said कि अब ये मेरी मेरी एक ही स्पेशलाइजेशन है और मैं ये एक ही चीज लकीर की फकीर की तरह किए जाऊंगा लेकिन ये एक काफ़ी अनयूजुअल चॉइस होती है आर्टिस्ट के लिए अगर देखा जाए तो। आई वाज़ वंडरिंग कि ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी जो क्रिएटिव ट्रैजेक्टरी है, उन जिससे तुम इंस्पायर हुए हो या जिसका इम्पैक्ट तुम पे पड़ा है या जिनको देख के तुमने कहा है कि एक जिससे जिनसे एक फ्रीडम तुमने विरासत में ली है? मैंने बहुत सारे लोग मैं मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि किशोर कुमार है, अपने गुलज़ार साहब है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने गुलज़ार साहब ने कहाँ कन्फर्म किया, गुलज़ार साहब ने एक ही चीज़ नहीं की, गाना नहीं गाया। हुँ। उन्होंने फ़िल्में कितनी सारी बनाई। उन्होंने एक्टिंग भी की एक आध एक आध फ़िल्म में, हालाँकि बहुत लेकिन कुल मिला के मुझे लगा कि किशोर कुमार ने सब कुछ किया, लिरिक्स लिखे, गाना गाए, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। चैपलिन, सत्यजीत रे, कुछ एक चीज़ में मुझे हमेशा ये लगा कि किसी एक चीज़ में हम कोई शॉप नहीं है यार। हुँ। कि हम कहेंगे कि अब ये इस दुकान से गाने मिलेंगे, तो ये दुकान गा मुझे मैं कभी-कभी बुरे भी गाने लिखता हूँ, कभी-कभी कुछ गाने मुझसे लिखे नहीं, मैं उसके ऊपर अपनी रोज़ी-रोटी डिपेंड कर दूँगा तो मुझे फिर वो करना ही पड़ेगा कि भाई अब 4 गाने रोज़ के लिखो, अगर कोई गाने के लिए गाना लिखने के लिए नहीं बुला रहा है तो फ़ोन करके बात करो कि भाई मुझे गाना लिखने के लिए बुला लो, क्योंकि वो मेरी शॉप है, अब मुझे बेचना है। तो मैंने उस तरह से उसको शॉप की तरह कभी भी जीवन को ही नहीं लिया। मुझे लगा कि इट्स नॉट अ शॉप, इट्स लव, फिल्म्स आर लव। filmmakers who are making films with love are in whatever sense, like उनको कुछ एक बात कहने का कोशिश है, उसमें आपको बुला लिया किसी तरह से असिस्ट करने के लिए, तो मैंने असिस्ट कर दिया। उसने कहा गाना लिख के असिस्ट कर दे, तो गाना लिख के कर दिया। उसने कहा कि गाना गा के कर दे, तो गाना गा के कर दिया। तो आपको उस तरह से उसके साथ में रहने का मुझे मुझे बहुत मैं वो शायद वो इसीलिए हंगरी हूँ कि जहाँ काम हो रहा होता है ना, वहाँ मुझे होना होता है। तो मुझे अनुराग की फ़िल्म में एक्टिंग करने को नहीं मिल रही है, तो वो बोलेगा कि यार स्वानंद यहाँ आके गाना ही कर दे, तो मैं गाना ही कर दूँगा। तो वो मुझे बोलेगा कि एक और कुछ कर, बे तेरी फ़िल्म में बुला ले, मुझे रहने दे वहाँ। आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी इन द वर्ल्ड। कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मैं मुझे शूटिंग पे बोलते हैं यार लिरिसिस्ट थोड़ी शूटिंग पे आते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ कैसे शॉट ले रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सो एंड बाकी सब कुछ जो हुआ मेरी ज़िंदगी में, एक्टिंग तो इतनी एक्सीडेंटल थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। हो गया, अब हो रहा है, वो भी चल रहा है, तो मैं कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक फ़िल्म बनानी रह गई है, वो भी बनानी है, बना दूँगा शायद, ज़िंदा रहते। Swanand, acting, no complaints and जो हो रहा है हो जाएगा is a very modest way to put it because आपने मतलब not just are you national award winning lyricist but आपने चुंबक के लिए national award भी मिला आपको and आपने उसमें in the film you played a mentally ill man और हाँ, वहाँ पे आपने एक बात कही थी मैं आपके इंटरव्यू में पढ़ रहा था कि आप बता रहे थे कि आपने पूरे तरह डायरेक्टर को सरेंडर कर दिया
बिकॉज़ यू weren't अवेयर, अभी तक आप में वो इंस्टिंक्ट नहीं आई है कि आप स्क्रीन पर कैसे लगते हैं। So this is very interesting to me because as a writer, when you're someone controlling the words, controlling the page, आपका एक अलग टाइप का कंट्रोल है। So यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है एज एन एक्टर। तो ये ज्यादा लिबरेटिंग है, ज्यादा फ्राइटनिंग है, या दोनों चीजें एक साथ? फ्राइटनिंग है, लिबरेटिंग है तो क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता। फ्राइटनिंग है क्योंकि अ, एक डिसिप्लिन होता है सोचने का ना। जब एक एक्टर के तौर पे आप सोचते हो तो आप जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ तो मेरे अंदर का असिस्टेंट डायरेक्टर जिंदा रहता है। तो हम्म। कभी-कभी मैं ही साइलेंस जबकि वो मेरा काम ही नहीं है। मैं कैमरा के सामने खड़ा हुआ हूँ और मुझे नहीं ये बंद कर, वो बंद कर। तेरा भाई लोग मुझे कह रहे हैं तेरा काम नहीं है, तू कॉन्संट्रेट कर ऑन your thing, what you are supposed to do. Because I have lived with actors, I have done theater for so many years. मैं एनएसडी में था तो एक्टिंग का एक बेसिक एक एक अंग हम सब में आ जाता है। टिश्यू करता है तो टिश्यू में भी आ जाता है। मतलब वैसे हम एक्टर की तरह ट्रेन नहीं हुआ हूँ, मैं तो नहीं हुआ हूँ। लेकिन करने को मौका मिल जाए तो कर। लेकिन इट्स फ्राइटनिंग, इट्स वेरी वेरी फ्राइटनिंग बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल। यू शुड बी कंट्रोल ऑफ योर, मतलब मैं ये करके देखता हूँ, फिर मैं ये करके देखता हूँ, फिर मैं ये करके देखता हूँ। मुझे लेंस की समझ है, मैं इस लेंस में कैसा दिखता हूँ। ये सब एक्टर्स को ये बातें पता होती है। उनको ये पता होता है कि मैं इतना करूंगा तो स्क्रीन पे कितना दिखेगा। आप तो करे जा रहे हो और फिर आपको स्क्रीन, मैंने जो पहली 2 फिल्में देखी मैंने कहा यार ये तो क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं किए जा रहा हूँ और वो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और वो जब स्क्रीन पे आता है तो इतना बड़ा दिख रहा है, इतना ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोले जा रहे हो। तो मैंने जब संदीप ने मुझे वो चुम्बक का रोल दिया था तो मैंने, इतना बड़ा रोल था कि, और मना करने का भी कोई ये नहीं था कि यार कोई आपको इतने बड़े रोल के लिए ट्रस्ट कर रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, स्मॉल लिटिल फिल्म। इतने बड़े रोल के लिए ट्रस्ट कर रहा है तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यू थिंक आई कैन डू इट? तो ही सेड यू, मैंने कहा देन आई विल सरेंडर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दिस, यू टेल मी ये है। तो ऑलमोस्ट हमने पूरी फिल्म ना 2 टेक्स में की है, एक थोड़ा सा ज्यादा और एक थोड़ा सा रिस्ट्रेन। तो वो जो रिस्ट्रेन में कभी कभी उसको लगता था कि नहीं ये तो लग ही नहीं रहा है मुझे, वैसा थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा, तो उस तरह से किया। लेकिन मुझे बाद में मुझे पता चला कि कैमरा के साथ में ना, सी, कैमरा वो देखता है जो आप दिखाते हो उसको। ये मुझे समझ में आया एक्टिंग के बारे में, बिकॉज कैमरा रीड्स यू। तो इफ यू आर शोइंग दैट यू आर एक्टिंग, कैमरा सीज दैट यू आर एक्टिंग। हम्म। कैमरा डजंट सी योर एक्टिंग, it sees you are acting. So that's why a child or a cat or a bird never looks bad on camera because they're unaware of camera. They're not aware of camera. If you are aware of something, if you become that, you say those lines the way they should be said without being aware of that thing which is shooting you, you can achieve a lot in acting in terms of cinema. That's what I have understood a little bit. So forget the camera first and foremost. You are not doing it for someone. You are living the moment the way you want to live it. The way you think is the way your director, your script thinks that it should be lived this way. And all the great actors who do this, I think they achieve it somehow. They have achieved somehow. हम्म। They get into the truth of the moment. All the bad actors, we call them bad actors because we think because they are showing it to the camera. ऐसा मुझे लगता है। आपने बोला कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एक अंदर से असिस्टेंट डायरेक्टर अभी भी जगा हुआ है। स्वानंद, यू मेंशन्ड अ लिटिल बिट अबाउट वांटिंग टू डायरेक्ट अ फिल्म, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि एज अ डायरेक्टर what interests you and what kind of cinema you would like to try and do? Actually, what I want to do, what I like is many things. Like बहुत सारा सिनेमा आपको अच्छा लगता है। मुझे इंडियन सिनेमा में बहुत सारी फिल्मों ने मुझे इन्फ्लुएंस किया हुआ है। हिंदी फिल्मों में मुझे बहुत सारी फिल्मों ने इन्फ्लुएंस किया हुआ है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम आप मैं ले सकता हूँ कि फलां डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर। लेकिन मुझे क्या बनाना है मुझे समझ में आया होता ना, राजा मैं बना चुका होता। I really am struggling with I have written a script right now and yesterday only I read it to somebody and I didn't like it.
Did they like it? they liked it, but it was like, अरे यार ये मैं कभी पूरा मुझे लगता है ना, cinema is a very 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 concrete medium. If it's only sees truth, if you are not truthful, यू आर फेकिंग। और दूसरा, मुझे बहुत सारे सालों से ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे बहुत सारा मुझे जैसे मुझे मुझे जो बहुत अट्रैक्ट किया अभी सिनेमा ने, जिस सिनेमा ने जो 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 जिंदगी मैंने नहीं देखी है, उसमें मुझे फैंड्री, नागराज मंजुळे, इस तरह का जो सिनेमा है, या वेस्ट में, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने कोई एक्सपीरियंस से जब आ रहा है, तो मुझे मुझे मेरे उतने एक्सपीरियंस में जाना पड़ेगा टू राइट अ फिल्म और टू मेक अ फिल्म। I don't know if I want to I want to make a film, but I just don't want to make a film when I just want to make a film. I don't want to make a film that way. आई वांट टू मेक, अभी 1-2 कहानियों पे मैंने काम किया हुआ है जो बहुत ही अलग है, जो क्योंकि मुझे जॉनर नहीं समझ में आते, मुझे जॉनर अच्छे नहीं लगते। मुझे लोग जब बातें करते हैं कि दिस मूवी इज़ दिस जॉनर, दिस मूवी इज़ दिस जॉनर, दैट जॉनर, मुझे नहीं अच्छा लगता। देयर आर मूवीज़ व्हिच कनेक्ट एंड देयर आर मूवीज़ व्हिच डोंट कनेक्ट, फ्रॉम व्हिचएवर जॉनर दे कम और गो, और व्हाटएवर। कुछ हँसा के कनेक्ट करती है, कुछ रुला के कनेक्ट करती है, पर कनेक्ट करती है। फेक मुझे घैवन का सिनेमा अच्छा लग रहा है। मुझे घैवन का सिनेमा मुझे मुझे अपने समय में अच्छा लग रहा है। मुझे मुझे ज़ोया अख्तर का पिक्चरें अच्छी लगती है हिंदी में, अगर मैं बात करूँ तो। मुझे कुछ उसकी फ़िल्में बहुत अच्छी लगी। गौरी की फ़िल्म मुझे अच्छी लगती है। मैं अपने समय की, अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। All right. मुझे अ, एक स और हर फ़िल्म में हर किसी का, हर डायरेक्टर का कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। वो भी आप यू गाइज़ नो इट बेटर, लाइक the person who is making one film cannot make the other film the same way, he makes it some other way, क्योंकि कुछ और आ चुका होता है उसमें, कुछ उसमें। तो सिनेमा इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी concrete medium, that's what I think, because it sees what you show, and if you are showing something wrong, it sees that wrong. If you are showing something fake, it shows that fake to the world. It doesn't show what it shows, what it is, what it doesn't show what you want it to be. तो उस वजह से ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम लगता है मुझे फ़िल्म में। फिर दूसरे हाथ पे ऐसा लगता है कि यार बनाना में क्या प्रॉब्लम है? बनाओ ना, पता चल जाएगा अच्छी है, बुरी है, बाद में पता चल Hmm. जाएगा। तो उस तरह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने आप के लिए, एंड आई वांट टू इफ यू आर you have some time, I'll give you my script to read. Sure, sure, absolutely. You Would tell love me to. कि क्या क्या करना चाहिए, बनानी चाहिए या फाड़ के फेंक देनी चाहिए? या सुधर सकती है तो किस तरह से सुधर सकती है? जी, बिल्कुल। But yes. This segment that we do, Swanand, is a segment in which both Raja and me will talk about a few pieces of music, book, cinema, art, which remind us of your work. Oh God. ठीक है? तो Oh God. so that's the segment and we really enjoy it and hopefully you will too. I'll ask Raja to start. Okay, I mean, this segment so far has been interesting because it is informed by the work of the people we are talking to. कि उनके what art we think is in conversation with their art. But in Swanand's case, it's a little different because we know Swanand so well. We've spent so much time with him. Uh, I'm going to be less all over the place and just come down to two books really. The first book is one of my favorite books ever written about rock music. It's a book called England's Dreaming by the writer John Savage. And Swanand, this is a book about the history of primarily of the history about this band, the Sex Pistols. But हाँ, the fact that this was, this idea that when you spoke about accessibility of art, ki you could not be the Gulzar Saab, but you thought, oh, but maybe I could be the Piyush, that idea of it. So I think with yeah, punk, what happened was they said that rock music does not belong to only the ones who can play the instruments, right? So it just widened up. And so it's this very interesting book, not just about the band, which is which was a crazy band with all these Sid Vicious and all these people, but it was this band which was formed to sell trousers.
was selling trousers in a shop in Camden as a publicity stunt, and then that band became its own thing, and that set off the punk rock movement. But in terms of My God. rebellion in artistry, it is a fascinating book in terms of how one thing can connect to the next and just keep, you know, rolling down that boulder, just keep collecting influence and have such a massive impact on the music scene, on the, because sometimes the lack of language is what is the language needed to speak to maybe younger people, which is what happened at that time, you know, post-war America and all of that, and America and England. So it's a very very interesting book, and I feel like उसमें काफी insights हैं जो आपको आपको कनेक्ट करेंगी. मैं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ी नहीं है. हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही मेरे को लगा कि ये बहुत, बिकॉज नॉर्मली वही पढ़ेंगे जिनको वो बैंड्स पसंद हैं, बट आई एम सेइंग कि इसकी हाँ. जो रेबेलियन वाली बात है वो इतनी एक्साइटिंग है कि आर्टिस्टिकली इतना ओपन है. सो दैट इज वन थिंग आई रियली लाइक. एंड द अदर बुक आई हैव फॉर यू इज one of my all-time favorites. This is a Vikram Seth book called The Golden Gate. The Golden Gate. ऐसा. हाँ, and you may Why have read the name. Golden Gate? Why Golden Gate? Because I'll tell you. Because it's a Golden Gate is a very prosaic romance, right? It's a man in San Francisco trying to find love, going through classified ads, you know, meeting people, having conversations. But the whole thing is written in sonnets. You know, he was. I know. So he was influenced by So Pushkin, by, you know, Eugene Onegin, and उसने इतना मतलब सुंदर वो लिखा था. You can just go into any, and I just the fact that you know, it just becomes about any page you open at length, and it becomes like that. Like it's rhyming, but the rhymes don't get in the way of the paragraph. para. You know, John reads the San Francisco Chronicle, sipping his dark Colombian brew. He chuckles over an ironical column by Hop turns to view. The visceral grouches of the crabby, Herman Curmudgeon, scans Dear Abby, Miss Manners' prim, refreshing views on etiquette and then the news, which tells no more than the survival of greed and fear and pain and hate. John sighs and thinks of Liz and fate, warmed by the solace of arrival, a loner who at last has come in a new house to a new home. Which I totally agree with this because अभी मैंने मेरा एक आप कमाई में भी एक पोएम है और मैंने उसको मेरा एक सिंगल के बतौर मैंने उसको रिलीज भी किया हुआ है. इट्स कॉल्ड चांद आवारा. द चांद इज अ लोन लवर. मतलब फाइंडिंग अकेला आदमी जो चांद. देखो देखो ये चांद भी आवारा आवारा आवारा. देखो फिरता है ये मारा 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 मारा. कभी आंगन में कभी देरी पर ये झांक के साथी ढूंढता है. पर बदकिस्मत के आते ही जग सारा पल के भूनता है. अब की ज़बां में बोलूं तो ये डेस्परेट है बेचारा. देखो ये चांद भी आवारा आवारा आवारा. So this actually what you read actually that I completely kind of understand because these are my influences and मुझे लगता है कि वो somehow ना राइम आ ही जाता है. Hmm. पोइट्री आ जाती है. मतलब जिंदगी की किसी भी चीज में मैं कुछ भी लिखने लगता हूं तो मुझे एक उसका एक एक्सप्रेशन पोएटिक एक्सप्रेशन आ ही जाता है. शायद वो इतना इनग्रेन्ड है और वो भी ऐसा कि कोई मतलब कोई बहुत रूल्स को फॉलो करता हुआ नहीं बहुत. एंड द सो या थैंक यू. बहुत बड़े-बड़े लोगों से तुलना कर दी यार. नहीं नहीं, तुलना नहीं, आपको बोला कि आप इन वर्क्स में, you know, you'll find something exciting and inspiring. I know. hopefully. I Yeah. said this is Pragya. beautiful. Pragya will have some very interesting picks now. You तो know, प्रज्ञा actually, this one was difficult for me, but because again, you know, Swanand's body of work is so diverse, and I know of a lot of it, so you know, it was hard to pick. So I decided to you know, talk about one book, one film, and one piece of music that to me remind me of the general quality of his work rather than any specific work. इनमें से दो से तो तुम वाकिफ हो गए, एक से शायद ना हो. तो हम्म. पहले गाना है तुम्हारे whenever I think of you, I think of कुमार गंधर्व, mostly out of envy. ठीक है. नहीं नहीं. अ,
तो उन्होंने भी गाया है, प्रहलाद ने भी गाया है, ज्ञान की जड़ियाँ। बुरा तो तो जिन्हें ज्ञान की जड़ियाँ। कि सिंपल एक बात है कि द बेस्ट नॉलेज, द बेस्ट ज्ञान इज one that gives you the roots to knowledge. The best guru is one who gives you the roots to knowledge rather than knowledge itself. I feel like this is also true about art. You know, that the best art is art that gives you the roots to your own truth. कि जब तुम उसको प्लांट करोगे, मेरा फल तुम्हारे फल से अलग निकलेगा शायद. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ योर बेस्ट वर्क हैज दैट क्वालिटी, विच इज व्हाई आई थिंक बाबरा मन मीन्स समथिंग टू एवरीवन. वो इनकलाबी गाना भी है, वो रोमांटिक गाना भी, रोमांटिक गाना भी है। दौर का भी गाना है, वो पोस्ट लिबरलाइजेशन का भी गाना है, वो 40s का भी गाना है, इंडिया के प्रोग्रेसिव्स का भी गाना है. वो उसमें वो एक कर्नल ऑफ ट्रूथ है, तो ज्ञान की उसमें एक जड़ी जड़ी है. है, जड़ी है ठीक उसमें। है, तो ये नहीं, एक हो बहुत गया. मेरा फेवरेट है। गुरातो जी ने मेरा फेवरेट है। अम, मेरा बदलता रहता है कुमार गंधर्व का. अभी राम निरंजन न्यारा रे वाह! मेरा फेवरेट है, क्योंकि वो कंप्लीटली अनट्रांसलेटेबल है. अम, दूसरी एक अंजन सकल पसारा रे। Angal, but I've अंजन, been अंजन। talking to Anjan Sakal Pasara Ray. I've been talking to scholars even in the US who've translated Kabir Sigal की एक बहुत अच्छी किताब है जिन्होंने but these two lines even the greatest of Kabir scholars refuse to actually translate. अंजन इज डार्कनेस, लेकिन वो क्वांटम फील्ड की तरह से देखा जाता है। वो शून्य है, शून्य गढ़ शहर, शहर गढ़ बस्ती। तो वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। We can talk about it sometime. Yeah, I'd love to. sometimes. दूसरा, the film Tim Burton's Big Fish. Again, the reason हाँ, why I thought of this film in your context is because we all know the story of of the film. It's about this man recounting his father's life as told by his father, being incredulous about the stories he had heard. But it's a celebration of storytelling. It's a celebration of life as a journey. और इट्स सो फनी कि तुमने वो सुग्राही वाली बात कही. I like. It's a celebration of sugrahiness and a prompt to all of us to travel with our own lenses and our own imagination and not be restricted by what we are told we should see in any scene. Again, this is a quality that I find in some of your best work. So Oh. ये दो चीजें हो गई. And the third is Amitava Kumar ने जो he's a professor of English, he's a novelist. He has written 3 diaries in the last few years. उसने अपने journals जो हैं वो publish किए हैं. उनमें से एक है ब्लू बुक द राइटर्स जर्नल. तो जिस तरह से मैं नोट टेकिंग की बात तुमसे कर रही थी, यू नो, these journals are just what he is reading, how he is processing, चाहे वो न्यूज पढ़ रहा है या कविता पढ़ रहा है या किताब पढ़ रहा है, जो उसकी खिड़की से उसे दिख रहा है उसको वो स्केच भी कर रहा है. And reading these journals, A has really, I keep reading them. कुछ साल पहले आया था, but every few months I read them. बहुत आसानी से पढ़े जा सकते हैं, but they really kind of celebrate the joy of consuming culture and remind you to keep writing your own notes. तो आज जाके जब ये खत्म होगा, तो मैं जो तुमने सुग्राही वाली बात कही थी वो अपने जर्नल में लिखूंगी, और मैं हाँ, ये जर्नल तुम्हें जो ब्लू बुक है वो भेजूंगी, जिससे कि मुझे भेजो प्लीज। हाँ, और हाँ। तुम अपने भी जर्नल लिखो. मैं अपने जर्नल तो लिखूंगा ही, मुझे वो लिखने चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी चीजें छूट जाती है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, लिखा जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि मैं जब जर्नल लिखने बैठता था, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो डायरी मेरी पोएम में बदलती चली गई। तो वो एक दिन की कविता बन जाती थी, जो भी है। क्या क्योंकि मुझे बात लगा है. कि बहुत डिटेल में लिखने से अच्छा है कि मतलब जो फीलिंग है, जो उसका जीस्ट है, वो निकल आए। फिर धीरे धीरे वो भी फेड आउट हो गया। नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं कर रहा हूँ। वो जिंदगी आ जाती है आपके ऊपर ना, वो गलत बात है। फिर जिंदगी के बीच में दोस्त भी आ जाते हैं तुम्हें प्रॉम्प्ट करने के लिए. हाँ, वो अच्छी बात है, वो मैं करूंगा, वो मैं करना चाहिए, लेखन से दूर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल.
स्वानंद, हमारे पॉडकास्ट का नाम है प्ले इट अगेन, हाँ। और उसकी वजह से हम एक चीज डिस्कस करना था आपसे कि वन वर्क ऑफ आर्ट, चाहे किसी भी फील्ड का हो, जो आपको लगता है कि ये सही से अप्रेज नहीं हुआ, या तो इसको बहुत ज्यादा एक्कोलेड्स मिले हैं और जो डिजर्व नहीं करता, या तो ये चीज और लोगों को देखनी चाहिए और लोगों को डिस्कवर करना चाहिए, समथिंग दैट हैज नॉट बीन सेलिब्रेटेड इनफ. सो व्हाट इज दैट वन थिंग? व्हाट इज दैट वन थिंग फॉर यू? आई फॉर अस तो इट्स हाँ, देयर आर नेवर मेनी, एंडिंग, मतलब वही है फिर कि नेवर पूरा एंडिंग पॉडकास्ट स्ट्रीम. करेंगे, पर तुम अभी पूरा अपना पॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जो जहाँ पहुंचनी चाहिए थी वहां नहीं पहुंची है। बिल्कुल. अ, पर आपके दिमाग ज़हन में क्या आता है? मैं ब्लैंक हूँ यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जैसे कुमार गंधर्व लगता है पहुंचे ही नहीं जहां तक पहुंचने चाहिए। कुमार गंधर्व को हमारी जनरेशन ने सुना ही नहीं और समझा ही नहीं, मतलब बहुत ही रेयरली कोई होता है जो कुमार जी की बात करता है और उतनी इन डेप्थ जाके करता है कि जिस तरह से उसके उसके बारे में बात की जानी चाहिए। लेकिन उनकी एक एक महफिल, उनकी एक एक हर एक राग की भी अगर आप बात करो, तो वो राग इतनी जिस जगह पे आप उनको सुनोगे वहां अलग गाया हुआ है और इंटरप्रिटेशन में अलग गाया हुआ है, नॉट ओनली इन 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 दिस थिंग। उसको उसका एक अलग साइड निकाल के लाए हैं। कोई एक सुर पे आज कंसंट्रेट किया, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नाचने पे आज उन्होंने किया, तो किसी एक सुर को उन्होंने उसके ऊपर, तो हर बार वो अलग है। एक्चुअली उनका जीनियस जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए था, अभी तक आया नहीं। पता नहीं क्या रीजन है, क्यों हम उस तरह से उस, और वर्ल्ड ने देखना चाहिए था, दुनिया ने देखना चाहिए था। तो ये मुझे कुमार गंधर्व के बारे में लगता है। और ऐसे ही मेरे एक टीचर है रॉबिन दास, मुझे लगता है हिज वर्क इन डिजाइन हैज गॉन टोटली टोटली, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्योंकि वो खुद बेतरतीब है, तो उन्होंने खुद कभी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं किया और किसी ने जहमत नहीं उठाई उसको डॉक्यूमेंट करने की। और क्योंकि वो बेतरतीब है और क्योंकि वो थोड़े से कलाकार हैं, तो थोड़े से एक्सेंट्रिक है, तो लोग उनको उनकी उस बात को आगे रख के, उनका काम है उसको पीछे चला जाता है। वो कह रहे यार वो तो चिढ़ता है यार, वो तो ये करता है, तो वो थोड़ा सा वैसे चला जाता है। वैसे ही और क्या है, और क्या, और क्या है, और क्या है। But Swanand, I think maybe this is the answer to what you are looking for in terms of the truth of storytelling. कि maybe you should be making the Kumar Gandharv movie. Maybe you should be I would taking love that to do story that. into a different, I because you would have the love truth, to. you have the I'm vantage too point. close to the family, yeah, to make that movie. But So who else I to was actually handle it? going to Who suggest that you understands the write music? his biography. I don't know if you've read I would love to write Namita his back. Devi Dayal's Sixth String of Vilayat Khan, which I think is अरे one of mind the blowing. finest. I love her work, all of it. उसका So I पहला think वो you should म्यूजिक write. रूम भी कमाल है, हाँ? I think you should write Kumar Gandharv's biography और फिर उससे देखना फिल्म निकलेगी जरूर. हाँ हाँ, पक्का लिखूंगा मैं उसके बारे में। मुझे लिखना चाहिए, मुझे, मैं चाहूंगा लिखना उनके बारे में। मैं सिर्फ उनसे बहुत बहुत ज्यादा फैमिली से जुड़ा हुआ हूं ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको इसलिए पता है क्योंकि आप उतने क्लोज हो, तो फिर वो, और फिल्म जो होती है ना, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी बायोग्राफीज बनती है, पर वो ऐसी बनती है कि जैसे मतलब वो वाह 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 वाह, हाँ, बिल्कुल. ऐसे नहीं होता ना, वाह 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 नहीं होती, सब किसी की भी जिंदगी नहीं होती है, हर किसी की जिंदगी में अपने, तो अगर वो सारे देख पाए हम तो वो हो जाएगा। करूंगा मैं कोशिश, तो मुझे कई लोगों ने बोला है, कई लोगों ने इनफैक्ट, मुझे अनुराग जब भी मिलता था पहले यही बोलता था कि तू कुमार गंधर्व पे बनाएगा तो मैं बना दूंगा। तो मैं उससे कह रहा था कि मैं वो बाद में बनाऊंगा, लेकिन वो मानता नहीं। बट yeah, दैट्स अ गुड थिंग, कुमार जी। Right. ये तुम लिख He तो will be डालो able to सब. take you his. you are you're going to find the form, you're going to find the soul, if that may be one of your many true stories that you need to write. But जाते जाते यार, अब एक तुम्हें थका दिया है, 1.5 घंटे से तुम्हारा सर खा रहे हैं, लेकिन हम्म। जाते जाते एक रिक्वेस्ट जरूर है. ये पॉडकास्ट ओइजो की प्रस्तुति है और ओइजो का एंथम तुम्हारा एक थिएटर का गाना है, वो वहां मेरे ख्वाबों का जहां. तो जाते जाते बस 2 लाइनें उसकी सुनाते जाओ. अरे क्या बात है, ओइजो का तो हाँ गाना है जिसकी वजह से मुझे विस्की भी मिले थे, जो तुमने अंकुर को दे दी थी. जो मैंने पी नहीं क्योंकि मैं पीना छोड़ चुका हूँ। तो वो वहाँ, वो वहाँ, वो वहाँ, वो वहाँ, वो वहाँ, वो वहाँ,
मेरे ख्वाबों का जहां, मेरे ख्वाबों का जहां, मेरे ख्वाबों का जहां, मेरे ख्वाबों का जहां, इस गली उस गली ली, ऐ मेरी मंजली तू छुपी है कहाँ, कहाँ 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 कहाँ, वो वहाँ वो वहाँ वो वहाँ, हाँ वो वहाँ वो वहाँ वो वहाँ. That is all we have for today. We really hope you enjoyed the conversation as much as we did. We would really appreciate it if you'd write into us. Tell us what else you'd like to listen to. Tell us what you like. Tell us what you don't like. This is an independently produced podcast. Both Raja and me have very, very unforgiving day jobs. So it really helps when we hear from you, when we have your support, and when you recommend us, when you like, when you subscribe. It makes it all worthwhile. So please keep doing that, and we'll see you soon. Thank you.